computer science and MBA in human resource, and mentored thousands of engineering and management students and professionals. And now he has worked as a project management and blockchain consultant. And he is currently associate with ABS Engineering College as a professor. Now I'd like to turn the floor over to our speaker, Mr. BP Sharma. Yes, ma'am. I'm not getting one. And one thing, this webinar is recording, so you are welcome to access it through our YouTube channel. I'll share the link of YouTube channel on the chat box. Sir, please. Should we start? Yes, definitely, sir. Okay, great. So, very good morning, everyone. This is our session of discussion today, the webinar, this introduction to blockchain. So, first, we should be knowing what exactly the blockchain is, why we use it, and what is the current demand of this technology in the market, and what is the future aspects of this blockchain technology. So, this is today's topic, blockchain. So I want to just, before starting, one thing about this technology, if you have some questions and other things, please, you can use the chat box, or you can ask these questions at the end of the session. You can just note down all your questions, whatever comes to your mind, and then you can ask in between also. So I think, Himani, you can coordinate for this questions. If some questions are coming up, please just go give to me for these questions. Okay, because sir, once the definitely. screen is on, the questions won't be visible to me in that case. Yes, sir. Okay. Okay, so let's start the session. So first thing is, we should be knowing what exactly the blockchain is all about. This is a basic definition that I have given to you, and this is certain words which is given in red. So there are critical words that comes as part of when we define something. So what is blockchain? So it's a read from the word by word. This is blockchain is a distributed database. Because all of you coming, maybe you're coming some technical background. So those coming from technical background, not technical background, but everybody must be knowing about the term data. Because data is everywhere. So, but the data can be managed on the single machine, or data can be managed on the multiple machines. But this is a very, very special kind of database system. It's called distributed database. Why we are calling so? I'll discuss more about that. First, try to understand the terminologies that we're giving. So, blockchain is nothing but a distributed database, which is based on a technology, a very special technology that's called distributed ledger technology, which works behind this technology, the blockchain. It's called distributed ledger technology, the DLT, where data gets stored on multiple peer-to-peer machines. This is when we can have thousands of machines together and data gets stored on thousands of machines parallelly. That's called peer-to-peer. That means whatever data we are having on one machine, the same data is available on other machine. तो थोड़ा सा आपको जानना होगा जो टर्म है हमारा पीयर टू पीयर, थोड़ा उसके बारे में भी हम और डिटेल में बात करेंगे, तो किस तरह से ये चीज स्टोर, क्योंकि ये जो टर्म हम यहाँ लिख रहे हैं, जो जितने भी कलर, जो रेड कलर में आप लोग देख रहे हैं टर्मिनोलॉजी, सो दैट पर्टिकुलर वर्ड्स नीड टू बी अंडरस्टैंड फर्स्ट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस टेक्नोलॉजी. यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है नोड्स, पीयर टू पीयर नोड्स. जो कंप्यूटर्स होते हैं, जो सर्वर्स होते हैं, उनको मोस्टली नोड्स हम यूज करते हैं. वर्ड किसी भी मशीन को अगर आप सर्वर बना सकते हो, वी कैन कॉल इट नोड्स. सो इन सिक्योर मैनर यूजिंग क्रिप्टोग्राफी, टेक्नोलॉजी जिसके पीछे काम करती है, सिक्योर टेक्नोलॉजी जो काम करती है, दैट इज नोन एज क्रिप्टोग्राफी, जो उसके पीछे लेयर काम करती है. तो हम प्रोसेस के बारे में भी आज हम बात करेंगे. अच्छा, दूसरी चीज याद रखिएगा, ये जो हमारा सेशन है, दिस इज जस्ट नॉट थियोरेटिकल सेशन, वी विल हैव सम प्रैक्टिकल सेशन आल्सो. तो जितनी बातें हम आपको बता रहे हैं, ये प्रैक्टिकली भी हम आपको दिखाएंगे कि क्रिप्टोग्राफी है तो क्रिप्टोग्राफी है क्या, डीएलटी जो बात कर रहे हैं, डीएलटी कैसे काम कर रही है, इसके पीछे जो भी टर्मिनोलॉजी, सो कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं, उसका भी एग्जांपल्स हम आपको इसके अंदर देंगे. तो ये मत सोचिए कि जो भी लोग अभी यहाँ सेशंस में मौजूद हैं, या जो अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, they can also join the session now, because we will have some more practical. ये 2 hours का सेशन है, rather than just a webinar, you can think of just इसको आप एक वर्कशॉप भी आप समझ सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कुछ हैंड्स ऑन भी मैं आपको दिखाऊंगा. जो वीडियो आपको ये मिलेगा, इस वीडियो के अंदर आप जब ये मैम अभी जैसे मैम ने बताया कि ये वीडियो आपको यूट्यूब पे भी पब्लिश होगा, या फेसबुक पेज पे मैम के यहाँ पब्लिश होगा एमसी डिपार्टमेंट के हमारे, तो वहां से आप जब इसको देखेंगे तो हो सकता है कि जो अभी इस वक्त हम प्रैक्टिकल आपको दिखाएं, आप अभी हाथ के प्रैक्टिकल ना कर पाओ उस चीज का, लेकिन वो प्रैक्टिकल आप इस वीडियो को देख के बाद में भी कर सकते हो. कौन कौन से सॉफ्टवेयर से हमने कैसे उनको यूज किया, कैसे उसको इंस्टॉल करना है, क्या करना है, जो भी आपकी डिमांड है वो आप मुझसे पूछ सकते हो और मैं आपको इसमें गाइड कर सकता हूँ. इसके लिए मैंने नंबर भी आपको यहाँ पे छोड़ा है, स्टार्टिंग और एंडिंग में नंबर भी.
अभी नंबर भी मेरा नोट कर सकते हो, अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में या बाद में कोई दिक्कत या प्रैक्टिकल करने में कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दैट ऑल्सो, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर के बारे में आपको गाइड कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो देखिए जो डेफिनेशन कह रही है उसको ध्यान से पढ़िएगा। तो ये हमने कहा है कि ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस। सबसे पहले बात एक डेटाबेस है, ध्यान रखिएगा। जैसे और आपने डेटाबेस सुने होंगे, माइस्क्यूएल सुना होगा, ओरेकल सुना होगा, कोई ना कोई नाम कहीं ना कहीं किसी ना किसी नाम सुना होता है। ये उसी तरह का डेटाबेस मॉडल है, पर एक डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल है, एक डिफरेंट काइंड ऑफ मॉडल। क्या है इसके बारे में अभी आगे के स्लाइड्स में हम बताएंगे, आपको प्रैक्टिकल थोड़ा बताएंगे इसके बारे में। और इसके जैसे कि आप जब बात करिए, जैसे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं इस वक्त, हम लोग लाइवली एक दूसरे से बातचीत करें, इसके पीछे टेक्नोलॉजी काम कर रही है, टीसीपी/आईपी टेक्नोलॉजी, जो हमें पता नहीं होता, बस हम तो मोबाइल लेते हैं बात कर लेते हैं, पर इसके पीछे भी एक लेयर काम करती है, इसका नाम है टीसीपी/आईपी। उसी तरह से जितने भी हमारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, उसके नीचे भी एक लेयर काम करती है, उस लेयर का नाम होता है डीएलटी टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे ध्यान रखना, जो हमने कहा जो डेटा स्टोर होता है, यहाँ पे एक सिंगल मशीन में स्टोर नहीं होता, एक साथ डेटा हजारों मशीन के अंदर स्टोर होता है, जिसको कहते हैं पीयर टू पीयर। यानी कि एक मशीन पे जो डेटा है, सिमिलर डेटा दूसरी मशीन पे एज इट इज होगा। किसी वजह से एक मशीन पे जो डेटा है, अगर वो मशीन हमारी डेड हो जाती है, बैठ जाती है, वायरस की वजह से करप्ट हो जाती है, या किसी नेचुरल कैलामिटीज की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, इवन देन डेटा इज नॉट डिस्ट्रॉयड, द डेटा कैन बी टेकन फ्रॉम अदर मशीन, क्योंकि सेम डेटा दूसरी मशीन पे भी अवेलेबल होता है, इसलिए इसको पीयर टू पीयर बोलते हैं। ये सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी में एक है जो अभी अवेलेबल है मार्केट के अंदर, इसको कहते हैं पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी। साथ साथ इसके अंदर जो डेटा होता है सिक्योर्ड मैनर में होता है। इवन जैसे कि अगर आप याद करिए, जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हो तो अकाउंट एक नंबर होता है, नॉर्मली जो एक सिंपल सा नंबर होता है, एनबीडी कैन रीड। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक सिक्योर मैनर, सिक्योर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, इसका नाम है क्रिप्टोग्राफी, जो सिक्योरिटी का सबसे बड़ा एक मॉडल है। जो अगर ये रियल वर्ल्ड की बात करें तो जितनी भी एप्लीकेशन है सिक्योर, जैसे अगर आप एक रियल एग्जांपल मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर, आप लोगों ने ये देखा होगा, जब हम कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं वहां दो प्रोटोकॉल होते हैं, एक एचटीटीपी प्रोटोकॉल होता है, एक एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल होता है। अगर आपने देखा हो, एस का मतलब सिक्योर होता है मतलब, और उसके पीछे क्रिप्टोग्राफी ही काम करती है। उसके पहले यहाँ खास तरह के सर्टिफिकेट्स होते हैं उसके अंदर, इसको कहते हैं डिजिटल सर्टिफिकेट्स या एसएसएल सर्टिफिकेट्स, वहां पे इस्तेमाल किए जाते हैं, जो क्रिप्टोग्राफी का ही फॉर्मेट है। तो जब भी कोई आप क्रेडिट कार्ड या नंबर या अकाउंट नंबर आप डालते हो किसी फॉर्म के अंदर ऑनलाइन, वो डेटा इनक्रिप्ट होके जाता है, जिससे कि कोई भी बीच में कोई हैकर या कोई भी लोग उस डेटा को एक्सेस ना कर पाए। तो उसके पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी काम करती है उसका नाम क्रिप्टोग्राफी होता है। और ब्लॉकचेन के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है वो क्रिप्टोग्राफी ही है, जो उसके पीछे काम कर रही है। कैसे काम करती है क्रिप्टोग्राफी, होती क्या है, आई शो द लाइव एग्जांपल्स, जिससे आप इसको प्रैक्टिकली देख पाए। साथ साथ यहाँ पे एक नीचे वाला स्टेटमेंट अगर आप पढ़ेंगे, ब्लॉकचेन अलाउज टू क्रिएट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। देखिए अगर आपने सुना होगा कि कंप्यूटर्स के अंदर हम कुछ भी करते हैं, सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इनको आप एप्लीकेशंस बोलते हो, चाहे आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट कुछ भी आप यूज करते हो। इवन जैसे हम इस टाइम जीमेल के सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं आपस में, कोई भी सब चीज आप जनरली कॉल सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पे खास तरह की एप्लीकेशंस बनती हैं, उनका नाम होता है डैप्स, या जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। अब एक नॉर्मल एप्लीकेशन में और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है, ये थोड़ा सा हमें अभी जानना पड़ेगा। ये पहले एक डेफिनेशन है, अगर हम मोटी मोटी बात करें, इसके अंदर से कुछ अगर आइडियाज आपको निकलने हो, कुछ क्वेश्चंस निकलने हो पहले आपको, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन थोड़ा सा मैं हिंट आपको दे देता हूँ कि एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर में डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी भी लैंग्वेज, सी से, जावा से, पाइथन से, या किसी भी लैंग्वेज से आपने कोई सॉफ्टवेयर बिल्ड किया, वो सॉफ्टवेयर आपकी लोकल मशीन पे रहता है। वो सॉफ्टवेयर आपने बना के किसी कस्टमर को दे दिया, या आपने 2 4 5 साल उस कस्टमर ने उसको यूज किया, फिर आप भी भूल गए, वो कस्टमर भी भूल गया। अब 2 साल बाद या 5 साल बाद, 10 साल बाद उस सॉफ्टवेयर के अंदर उसको कोई चेंज करना। अब मान लीजिए आप एक छोटा सा एग्जांपल समझ लीजिए, आप इसको मैं एक रियल वर्ल्ड, आपने पहले तो कुछ नहीं देखा हुआ, लेकिन आप एक बहुत साल पहले एक समस्या आई थी 5G के प्रॉब्लम, शायद बहुत लोगों को नहीं पता हो, या किसी ने हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, लेकिन उसी तरह की एक समस्या पिछले हफ्ते या पिछले 1 महीने के अंदर आई थी, शायद आपको पता हो, कि पेट्रोल के जो दाम थे हमारे 100 रुपए क्रॉस कर गए थे, मेरे ख्याल से, अगर आप लोगों को कुछ पता हो। और जो हमारी मशीनें हैं पेट्रोल पंप्स पे जो लगी हुई हैं, मैक्सिमम 2 डिजिट तक का डेटा, उनको पता ही नहीं था कि पेट्रोल कभी 100 रुपए भी हो सकता है। तो जिस दिन वो 100 रुपए हुआ, तो वो 2 डिजिट को डेटा मेंटेन कर सकती थी उसमें, इसलिए डेटा उन्होंने 0 0 दिखाना शुरू कर दिया। शायद अगर किसी अखबार में पढ़ा हो आप लोगों को, एक पर्टिकुलर डे के अंदर जो डे आपका पेट्रोल कुछ सिटीज के अंदर 100 रुपीज हुआ था। मेरे ख्याल से ये कुछ समझ पा रहे हैं आप लोग जो मेरी बात में कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो उन मशीनों ने अचानक से काम करना बंद कर दिया। सेम चीज अगर सोचिए, अगर उस एप्लीकेशन में आपको कोई चेंज करना पड़े या उस हार्डवेयर में कोई चेंज करना, तो कैसे करोगे अब आप? तो ये जो एप्लीकेशंस हैं जो ब्लॉकचेन के अंदर बनती है, उनके अंदर खास बात क्या होती है कि जो आपका प्रोग्राम कोड है वो भी आप सॉफ्टवेयर के अंदर ही, ब्लॉकचेन के अंदर ही बंडल कर सकते हो। और कल को अगर आप उसमें कोई चेंज करना चाहते हो तो उसके लिए आपको इधर तक ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा ऑलरेडी हजारों मशीन पर अवेलेबल है, जिसको आप कभी भी आप रिकॉल करके उसके अंदर चेंजेस करके नया वर्जन उसका आप लॉन्च कर सकते हो। तो इसके अंदर ये बहुत सारी खास चीजें हैं जो यहाँ पे काम कर रही है।
किसी के माइंड में अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चंस आ रहे हो, हिमानी जी आप जरा चेक करिए हमारी मैम, कुछ बच्चों के क्वेश्चंस हैं किसी के इस पॉइंट पे? Yes, sir. One thing, I'm just checking. No, sir, अभी तक नहीं है। चलिए यहां तक हुई। तो यहाँ पे हमारे कुछ टर्म अभी पकड़ में आए हैं, डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस, पी2पी, क्रिप्टोग्राफी और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये 5 वर्ड हैं जिनके आसपास ये टेक्नोलॉजी वर्क करती है। तो थोड़ा सा इनके बारे में भी हम बात करेंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो इसको पहले समझना पड़ेगा, जो भी हमने टर्म यूज किया है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क या डिस्ट्रीब्यूटेड मॉडल, आखिर वो कहना क्या चाहता है। तो जिन लोगों ने अगर थोड़ा बहुत भी आईटी बैकग्राउंड से, जो बीसीए के स्टूडेंट्स होंगे, आईटी बैकग्राउंड से होंगे या नहीं भी होंगे, वो ये लेकिन ये जितने भी मैं स्लाइड अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये मोस्टली जनरल स्लाइड्स है। अगर आपकी कोई बैकग्राउंड कंप्यूटर्स की नहीं भी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, तब भी आप उसको समझ सकते थे। अगर ये सिंपल देखिए, ये हमारा एक सर्वर है सपोज, ये हमारे लोग हैं जो इसको एक्सेस कर रहे हैं, डेटा को एक्सेस। ये आपके जो भी लोग हैं ये किसी ना किसी डिवाइस से सर्वर को एक्सेस कर रहे होंगे। आप याद करिए, कोई भी डेटा आप यूज कर रहे हो या तो मोबाइल से एक्सेस करते हो, मोबाइल कोई ना कोई ऐप होती है, आप इस डेटा से एक्सेस करते हो, या कोई ना कोई विंडोज एप्लीकेशन होती है, कोई ना कोई वेब एप्लीकेशन होती है। तो ये वो सर्वर है जहां पे डेटा रखा हुआ है, और ये सारे क्लाइंट्स हैं जो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। ये सेंट्रलाइज नेटवर्क है, क्योंकि एक सेंट्रल सर्वर है, बाकी सारे क्लाइंट्स हैं आपके ये जो डेटा को एक्सेस कर रहे हैं। किसी वजह से अगर ये सर्वर बैठ जाए, शट डाउन हो जाए या कुछ हो जाए इसके, तो क्या ये लोग डेटा एक्सेस कर पाएंगे? ये सेंट्रल सर्वर की प्रॉब्लम है। तो इसमें ध्यान रखना, ये जो हमारे पास है यहाँ पे ऑल द नोड्स दैट आर कनेक्ट, ये जो कंप्यूटर्स, लैपटॉप या मोबाइल जो भी है आपके पास, ये सब हमारे पास इस केस में नोड्स कहला रहे हैं यहाँ पे। तो ऑल द नोड्स दैट आर कनेक्टेड टू अंडर सिंगल अथॉरिटी। तो ये एक सिंगल सर्वर है हमारा। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस प्रॉब्लम की क्या है, किसी वजह से ये सर्वर अगर आपका बैठ गया तो ये सारे के सारे क्लाइंट आपके यूजलेस हो जाएंगे, ये कोई भी डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये बहुत पुराना मॉडल है जो पहले बहुत पहले यूज होता था, आज की डेट में कोई भी इस मॉडल को मॉडल अडॉप्ट नहीं करता। दूसरा मॉडल लेके आया गया जिसका नाम दिया गया डिसेंट्रलाइज मॉडल, कि जहां पे एक सर्वर नहीं बनाया आपने, मल्टीपल सर्वर्स बनाए, जिससे लोड बैलेंसिंग भी हो सकती है। साथ साथ क्या होता है कि जैसे ये पर्टिकुलर सर्वर है आपका, ये सपोज हमारे पास 7 यूजर इससे जुड़े हुए हैं, अगर किसी वजह से ये सर्वर बैठ जाता है कि बस 7 यूजर का डेटा एक्सेस नहीं होगा, बाकी सबका डेटा एक्सेस होता रहेगा। इवन ये भी हो सकता है कि ये सर्वर ज्यादा से ज्यादा इस नेटवर्क के अंदर ये होगा हमारे पास कि जो भी सर्वर हमारा अगर काम नहीं कर रहा होगा, केवल उससे संबंधित यूजर है वो काम नहीं कर पाएंगे, बाकी सब लोग काम करते रहेंगे। और दूसरी बात, जो डेटा हमारे पास यहाँ है वही डेटा यहाँ रेप्लिकेट हो जाता है, लेकिन लिमिटेड नंबर ऑफ सर्वर्स होते हैं। ये लोड डिस्ट्रीब्यूशन के काम आता है। ये दूसरा मॉडल है हमारा, इसका नाम है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क। ये भी काफी मशीन इस्तेमाल करती है। जैसे अगर सबसे इजी एग्जांपल आप देखिए, जब आप गूगल की साइट पे लिखते हो google.com, तो ऑटोमेटिक सर्वर पे लेके जाता है google.co.in। जब आप यूके में बैठ कर अगर लिखते हो google.com, तो आपको सर्वर पे लेके जाएगा google.co.uk। हर कंट्री के अंदर गूगल के अपने अपने सर्वर्स हैं। तो अगर किसी वजह से इंडिया का सर्वर बैठ गया तो इंडिया के यूजर है केवल वो डेटा एक्सेस नहीं कर पाएंगे, लेकिन बाकी कंट्री के अंदर डेटा एक्सेस होता रहेगा। ये एक सिंपल मॉडल आप इसको समझ सकते हो, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क मॉडल, जो इसके अंदर काम आता है। दूसरा है, देखिए अब हम जो ब्लॉकचेन की बात कर रहे हैं इन दोनों से बियॉन्ड है। वो क्या क्या कहता है, देखिए वो कहता है कि नहीं, जो डेटा होगा वो एक साथ पहले हजारों मशीन पर रहेगा। ये देखिए ये नोड्स है हमारे पास, ये क्लाइंट्स हैं। साथ साथ क्या देखिए, अगर मान लीजिए डेटा जो इस मशीन पे है वही डेटा जो यूजर ये डेटा यहां से एक्सेस कर रहा है, वही डेटा यहां से एक्सेस कर सकता है। अगर किसी वजह से ये मशीन बैठ जाती है तो डेटा यहां से ले सकता है। अगर ये भी बैठ जाती है तो डेटा यहां से ले सकता है। ये पूरा नेटवर्क है। तो इसके अंदर हजारों मशीन आपस में कनेक्टेड होती है। जो डेटा एक मशीन पे होता है वही डेटा दूसरी मशीन पे भी होता है। इसमें किसी भी कस्टमर को कभी भी डेटा लॉस होने का कोई चांस नहीं है, उसको किसी ना किसी सर्वर से डेटा मिल ही जाएगा। ये जो मॉडल है, इस खास मॉडल का नाम है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, वो इस मॉडल को यूज करती है, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं जो और इन डेटाबेसेस के अंदर आप कभी भी कवर नहीं कर सकते। जो ऑरेकल है, माइस्क्यूएल है, सीक्वल सर्वर है, जो भी आपने नाम डेटाबेसेस के सुने होंगे, वो इस मॉडल को, जो मोस्टली या तो इस मॉडल पे काम करते हैं या इस मॉडल पे काम करते हैं। ये लोग इस मॉडल पे काम नहीं करते। इस मॉडल में जो काम करता है वो है ब्लॉकचेन। तो आप समझ सकते हैं ये एक मॉडल है, खास मॉडल है, जिसके अंदर जो पीयर टू पीयर में बात कह रहा हूँ वो क्या है, P2P है। एक डेटा जो उस मशीन पे है वही डेटा इस मशीन के ऊपर है, दैट्स कॉल्ड P2P। और ये जो मॉडल है जहां डेटा आपस में सर्वर करने हजारों सर्वर कनेक्टेड होते हैं, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। तो जो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस में जो कह रहा हूँ टर्मिनोलॉजी, पहले इसको समझिए। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि डेटा अगर इस मशीन पर चेंज हुआ होगा तो इस मशीन पे कैसे आएगा। तो उस जो आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, आप इस इंफ्रास्ट्रक्चर को आप समझ सकते हो। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल है इसका नाम है डीएलटी, डिस्ट्रीब्यूटेड टेक्नोलॉजी। ये थोड़ा सा मॉडल, इस आर्किटेक्चर को आप समझ सकते हो। तो इस मॉडल को अगर आप रियल वर्ल्ड में समझना चाहते हो कि ये रियल वर्ल्ड में कैसे काम कर रहा होगा, तो रियल वर्ल्ड का सिनेरियो क्या है कि रियल वर्ल्ड में किस, इसके लिए आप सिंपल सा गेम समझ सकते हो।
हमारा जो रेलवे नेटवर्क है, रेलवे नेटवर्क देखा है आपने, नीचे रेल बिछी होती है, रेलवे का मतलब क्या, नीचे जो आपकी पटरी बिछी होती है बिकॉज रेल्स, और उसके ऊपर जो ट्रेन चलती है, अलग अलग तरह की ट्रेन चलती है, आपने देखा कोई मेट्रो ट्रेन चल रही है, कोई आपकी आपकी मालगाड़ी चल रही है, या कोई आपकी पैसेंजर ट्रेन चल रही है, नेटवर्क एक ही होता है, सारी गाड़ियां लगभग उसी नेटवर्क के ऊपर चलती है हमारे पास। और उसके पीछे सिग्नल सिस्टम होता है, क्योंकि कोई गाड़ी जा रही थी वहां उसको रेड सिग्नल दिखाना है, ग्रीन सिग्नल दिखाना है, उसके लिए पूरा नेटवर्क बिछा होता है जो डेटा को मेंटेन करता है। तो जैसे रियल हमारा नेटवर्क काम करता है रेलवे का, आप उसी तरह का सिस्टम समझ सकते हो इस सिस्टम को, जहां चीजें हमारी मिलकर काम करती है। तो ये जो पीछे नेटवर्क है, जो बैकग्राउंड में नेटवर्क काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी को बोल रहे हैं हम डीएलटी। जो डेटा को, जैसे ही डेटा आप एक मशीन में कोई भी डेटा चेंज करोगे, बाकी मशीन में अपडेट करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, वो प्रोटोकॉल काम करते हैं, पीछे लेयर काम करते हैं, इसका नाम है डीएलटी। ये ध्यान रखना है। तो जितने भी टर्म हम यहाँ यूज कर रहे हैं, तो वो आप समझ सकते हो। तो डेटा मल्टीपल मशीन के ऊपर एक साथ जा रहा है, वो P2P है हमारा, नीचे के डेटा। और दूसरी बात, जो डेटा है वो सारा हमारा मेंटेन हो रहा है सारी मशीन पे, इसलिए क्योंकि एक साथ डेटा हजारों मशीन पे रखा है P2P मॉडल में, इसलिए इसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा। तो इस यहां तक किसी को कोई डाउट आ रहा हो इस मॉडल को समझने में कि किस तरह से ब्लॉकचेन नेटवर्क औरों से डिफरेंट है, ऑरेकल से कैसे डिफरेंट है, माइस्क्रो से कैसे डिफरेंट है, ये लॉजिक क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा नहीं हो रहा है आप लोगों को, तो थोड़ा सा अगर इसके बारे में कोई क्वेरी किसी की हो यहां तक, तो आप बता सकते हो मुझे। एनीबडी, एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवेयर? हमारी अगर आप चेक करते रहिए, किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है किसी इस बारे में, किसी का कोई भी क्वेश्चन है, आप जस्ट पोस्ट चैट बॉक्स वहां डाल दीजिए, जैसे कि नो हम आपको सर, आंसर दे सकते हैं। नो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं। अब बात आ जाती है कि ये टेक्नोलॉजी बनाई क्यों गई, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो डेटाबेसेस या जो पहले की जो एप्लीकेशन चल रही थी रियल वर्ल्ड में, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रही थी। तो सबसे पहली चीज देखिए, सबसे दो पॉइंट है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी एंड इम्यूटेबिलिटी। ये दो जो वर्ड है, ये अपने आप में यही बहुत बड़े वर्ड है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जो और किसी डेटाबेस में नहीं है। इसको जरा समझिए कि ट्रांसपेरेंसी, इम्यूटेबिलिटी, ट्रेसेबिलिटी, टेम्पर प्रूफ, इनकरप्टिबल डेटाबेस, ये जो ऊपर की कुछ फीचर्स लिखी है आपकी, पहली 5 फीचर्स अगर मैं बात करूं, ये सबसे मेजर फीचर्स हैं जिसकी वजह से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रही है और धीरे धीरे ग्रो कर रही है, और ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में काउंट होती है। यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जो बिल्कुल इस टाइम हॉट है, इमर्जिंग का मतलब ये, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी पैदा हुई थी सन 2009 में, जहां पे एक नाम आया था बिटकॉइन, अगर आपने नाम सुना हो, तो 2009 से ये मार्केट में आया। 2015 में इसने मार्केट पर पकड़ बनानी स्टार्ट की, जब इथीरियम नाम का एक और नेटवर्क बिल्ड हुआ। उसके बाद अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल लेवल पे लोगों में जागरूकता आई, जहां से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों ने जानना स्टार्ट किया। तो लगभग अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया के अंदर लगभग 2017 से इसमें थोड़ा सा अवेयरनेस जनरेट हुई, और प्राइवेट सेक्टर के बजाय पब्लिक सेक्टर यानी गवर्नमेंट सेक्टर ने इसको पहले अडॉप्ट किया, हमसे भी पहले इसको अडॉप्ट किया। वो इस्तेमाल किया, जो आपके लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं, खसरा खतौनी, जो आपकी आपने जानते हो, जो भी आप प्लॉट सेल करते हो या हाउस सेल करते हो, जमीन सेल करते हो, आप उसको लैंड रिकॉर्ड्स बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले इस टेक्नोलॉजी को यूज किया, इस पर्टिकुलर लैंड जो डेटाबेस होता है, लैंड रिपोजिटरी होती है हमारी, उसको मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट चाहिए, इसको नाम है ट्रांसपेरेंसी, एक है इम्यूटेबिलिटी, और ट्रेसेबिलिटी, जो तीसरी फीचर है ट्रेसेबिलिटी। आखिर ये चीज क्या है? पहले अगर आप लैंड रिकॉर्ड्स को जानते हैं तो हम उसके बारे में बताएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है, इंटरनेशनली क्या चल रहा है इसके बारे में, और इंडिया के अंदर अभी लेटेस्ट सिनेरियो क्या है, उसके इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्यों बोल रहे हैं, थोड़ा सा उसको जानना जरूरी है। तो ये कोई बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी को मार्केट में स्टेब्लिश होने के लिए 30 साल लगते हैं, इसीलिए इसको इमर्जिंग टेक्नोलॉजी कहा जाता है। इसकी मार्केट में बहुत डिमांड है, डिमांड इसलिए क्योंकि बंदे भी कम है, जानने वाले लोगों भी बहुत कम है। इसलिए जो और यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने भी कोई नई चीज इंट्रोड्यूस की, जो मैं आपको इसी प्रोग्राम की, इसी वेबिनार के दौरान आपको बताऊंगा कि किस तरह से। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, अगर मैं ट्रांसपेरेंसी बाद में लेता हूँ, इम्यूटेबिलिटी को पहले लेता हूँ। इम्यूटेबिलिटी का मतलब होता है कि जो डेटा है आपका है, एक बार आपने उसको डाल दिया, ना तो उसको आप एडिट कर सकते, ना ही मॉडिफाई कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते। आखिर इस लाइन का मेरा मतलब क्या है? आप जो नॉर्मल डेटाबेसेस, अगर आपने कोई भी सुना होगा, जैसे कि सपोज आप एक वर्ड की फाइल आप ले लीजिए, वर्ड की फाइल आपकी है और आपकी मशीन पे पड़ी हुई है, उस फाइल में कोई भी मॉडिफाई कर सकता है। या कोई डेटाबेस अगर आपने सुना होगा, ऑरेकल, माइस्क्रो, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके अंदर एक यूजर होता है, सुपर यूजर होता है, इसको आप एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हो, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हो, डीबीए बोलते हो। और जो डीबीए होता है उसके हाथ में फुल पावर होती है, तो डेटाबेस में वो इंसर्ट भी कर सकता है, अपडेट भी कर सकता है, वो डिलीट भी कर सकता है। तो सपोज आप एक बैंकिंग सेक्टर की कोई एप्लीकेशन लेते हैं, उसको फाइनेंशियल सेक्टर बोलते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर की कोई एप्लीकेशन है कि किसी कस्टमर के अकाउंट में सिर्फ 5 रुपए पड़े हैं, और डीबीए ने उसमें को रिकॉर्ड को मॉडिफाई किया, एक अपडेट क्वेरी फायर करी, उसको 5 करोड़ कर दिया। कितनी देर का काम है आप सोचिए उस काम को करने के लिए? हार्डली एक अपडेट क्वेरी चलानी है उसको, या डेटाबेस को वहीं खोलना है, और अपडेट क्वेरीज हार्डली टेक जस्ट ओनली 2-3 सेकंड्स,
और उसके बाद उसका डेटा अपडेट हो जाएगा और जो उसके खाते में 5 करोड़ रुपए, जबकि 5 करोड़ रुपए कहां से आए, इसकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है उनके पास, क्योंकि उसके हाथ में पावर है। तो डेटा जो आपके पास, जो डीबीए जो सुपर यूजर है, वो चाहे तो डेटाबेस के साथ कोई भी छेड़छाड़ कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, कोई कंट्रोल नहीं है। इवन आप सबसे सिंपल एग्जांपल, ये लैंड रिकॉर्ड की मैं आपको बात कर रहा हूँ, आपने सुना होगा सबसे ज्यादा जो धोखाधड़ी होती है वो लैंड रिकॉर्ड्स में ही होती है। अगर आप जैसे जहां लैंड रिकॉर्ड रखे जाते हैं गवर्नमेंट के, आपको पता होगा वहां पे जब भी कोई आप हाउस परचेज करते हो, जब भी कोई लैंड परचेज करते हो, वहां पे 20 ईयर्स का रिकॉर्ड निकाला जाता है, उसको 20 साल वाला रिकॉर्ड होता है। और वहां पे जब आप जाते हो तो अच्छा खासा आपको पैसा भी देना पड़ता है, फिर वो रिकॉर्ड ढूंढते हैं, फिर कोई किसी की फाइल चेंज कर देता है, कोई किसी की फाइल चेंज कर देता है। आपको पता होगा सबसे ज्यादा जो अगर केसेस अगर आप देखोगे इंडिया के अंदर, तो सबसे ज्यादा केस लैंड रिकॉर्ड्स के ही हैं कि उसने मेरा घर कब्जा कर लिया, उसने मेरे पेपर चोरी कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया। क्योंकि वहां पे दो चीजें सबसे बड़ी है, एक तो ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है वहां पे, और दूसरी इम्यूटेबिलिटी नाम की चीज। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले जो एप्लीकेशन, जो यूज केस इसका आइडेंटिफाई किया, वो किया लैंड रिकॉर्ड्स की। सबसे ज्यादा धांधली लैंड रिकॉर्ड्स में ही होती है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस टेक्नोलॉजी, क्योंकि टेक्नोलॉजी इम्यूटेबल है कि डेटा इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक बार डल गया तो ना तो कोई इसको डिलीट कर सकता है, नहीं कोई मॉडिफाई कर सकता है, ना उसको अपडेट कर सकता है। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स के लिए बेस्ट फीजिबल टेक्नोलॉजी है। दूसरी बात, बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, क्योंकि अगर कोई भी डेटा अगर आपको डाला, उसके अंदर ट्रेसेबिलिटी नहीं होती कि भैया 5 करोड़ रुपए जिसके खाते में अभी तक 5 रुपए थे, 5 करोड़ वो कैसे गए, उसकी कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। तो उसकी ट्रेसेबिलिटी के लिए उन्होंने कंसेप्ट बिल्ड किया, इसका नाम है यहाँ से ये ट्रेसेबिलिटी नाम की फीचर ऐड की गई कि कोई भी अगर ट्रांजेक्शन हुआ होगा तो उसके खाते में पैसा आया कहां से, इसके पीछे क्या लेयर थी, जब तक वो ट्रेस नहीं करेगा, सिस्टम इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा, वो डेटा अपडेट होने ही नहीं देगा, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होने ही नहीं देगा। तो बैंकिंग सेक्टर की जितनी भी प्रॉब्लम है, लैंड रिकॉर्ड की जितनी भी प्रॉब्लम है, इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम देता है सॉल्यूशन केवल और केवल ब्लॉकचेन। ट्रांसपेरेंसी, अब जब डेटा आपका एक बार डलने के बाद जो डेटा है आपका वो ट्रेसेबल भी है और इम्यूटेबल भी है, इससे क्या आएगी, इससे आएगी ट्रांसपेरेंसी। यानी जो डेटा है वो कभी गलत होने का कोई चांस नहीं है। तो कल को यह कहता है कि वैसा ही तो आपने डिलीट कर दिया होगा, ये तो आपने मॉडिफाई कर दिया होगा, तो कोई चांस ही नहीं। ये टेक्नोलॉजी ना तो डेटा को एडिट करना अलाउ करती है और पूरा 100% डेटा को ट्रेस कर सकते हो आप लोग, इसलिए फीचर आई ट्रांसपेरेंसी। तो अगर कोई भी आपका बिजनेस जो प्योरली जैसे गवर्नमेंट सेक्टर की मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट की अक्सर आरोप लगते रहते हैं कि भाई ये जो पैसा था किसी के खाते में गया नहीं गया, क्या गारंटी है। तो इसके लिए ब्लॉकचेन एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। ई गवर्नेंस के लिए ब्लॉकचेन एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन है। जहां भी आप कहते हो कि नहीं ये पैसा सरकार ने उस खाते में दिया था, नहीं गया, वो सारा का सारा डेटा क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर मौजूद है, और ब्लॉकचेन का जो डेटा उसको कभी लॉस नहीं कर सकते आप, कोई मॉडिफाई नहीं कर सकते, उसको डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेटा टेम्पर प्रूफ होता है ना। तो जब आप इसको इम्यूटेबल डेटा है तो हमें एक खास फीचर मिलती है, इसका नाम है टेम्पर प्रूफ। जो डेटा सिक्योरिटी का बहुत, जब साइबर सिक्योरिटी आपने सुनी होगी, वहीं पर होती है डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी का एक बहुत ही अहम मुद्दा हमारा होता है ब्लॉकचेन, कि कोई भी डेटा 100% टेम्पर प्रूफ माना जाता है। और दूसरी बात, एक और खास चीज है टेम्पर प्रूफ के अंदर यहाँ कहने की, देखिए इंपॉर्टेंट फीचर क्या है। जैसे अभी मैंने आपको बताया था, ये जो नोड होते हैं हमारे पास एक साथ हजारों की संख्या में होते हैं। अगर आपका पास सिंगल सर्वर होता तो कोई हैकर इसको बहुत इजीली हैक कर सकता है। अगर आपके पास डेटा 4 या 5 सर्वर पे है तब भी इसको बहुत इजीली हैक कर सकता है। लेकिन अगर आपका डेटा एक साथ 4-5 हजार सर्वर के ऊपर रखा हुआ है, 1000 सर्वर के ऊपर होता है, एक कोई भी इतना बड़ा हैकर नहीं होता है कि 1000 सर्वर को एक साथ हैक कर सके और इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके पास हो जिससे कि वो डेटा को मॉडिफाई कर सके। इसीलिए लगभग ये ऑलमोस्ट नॉन हैकेबल डेटाबेस माना जाता है। तो ये बिल्कुल टेम्पर प्रूफ भी है, साथ साथ ही नॉन हैकेबल भी, हाईली सिक्योर डेटाबेस माना जाता है। ये ध्यान रखिएगा सबसे पहले, ये बहुत ही खास फीचर्स हमारे। साथ साथ देखिए फिफ्थ नंबर फीचर अगर आप देखेंगे, दिस इज इनकरप्टिबल डेटाबेस। मतलब क्या इस बात का कि किसी वजह से मान लीजिए इस मशीन में कोई डैमेज हो जाता है, या एक मशीन को किसी तरह से हैकर हैक भी कर लेता है, क्या कुछ ये मशीन डैमेज हो जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप उस मशीन को डिलीट मारो, डेटा जो पुराना पड़ा था उसको डिलीट मारो, आप दूसरे नेटवर्क से डेटा उठाओ, जो डेटा आपका यहाँ पड़ा था वो ऑटोमेटिक आपकी मशीन पे आ जाएगा। तो डेटा खाली आपकी मशीन पे नहीं है, डेटा पहले हजारों मशीन पे रखता है, इसलिए डेटा को करप्ट होने का कोई चांस नहीं है। जो लैंड रिकॉर्ड के केस में हमारी बहुत ही बड़ी रिक्वायरमेंट है, या बैंकिंग सेक्टर की हमारी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है कि डेटा हमारा कभी लूज ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर जो ये आपका सिंगल डेटाबेस अगर होता है, इसका बार बार आपको बैकअप लेने पड़ते, इनके भी बैकअप लेने पड़ते। अब आपका ऑटो बैकअप हो रहा है तो बैकअप लेने की भी यहाँ कोई खास नीड नहीं है आप लोगों को। ये ध्यान रखिए, ये खास तरह का नेटवर्क है, ना बैकअप की चिंता है आप लोगों को, ना डेटा डेस्ट्रॉय होने की चिंता है, ना डेटा के चोरी होने की चिंता है, ना डेटा को मॉडिफाई होने की चिंता है। इस तरह की फीचर्स आपकी किसी भी डेटाबेस के अंदर मौजूद नहीं है, जो केवल और केवल आपको एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट देती है, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है, आप 6 पॉइंट देखिए। बिल्डिंग ट्रस्ट अमंग द स्टेक होल्डर्स, यानी स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं, जो भी किसी सिस्टम में काम कर रहे होते हैं। मान लो बैंकिंग की बात करो, तो जो मेरा कस्टमर है,
जो मेरे एम्प्लॉइज हैं या जो मेरे मैनेजमेंट के लोग हैं, दे आर ऑल स्टेक होल्डर्स, या जो लोन लेने वाले लोग हैं या जो पैसा जमा करने वाले लोग, दे ऑल आर स्टेक होल्डर। जब उनको पता है कि भाई यहाँ जो डेटा है वो इम्यूटेबल है, ट्रेसेबल है, टेम्पर प्रूफ है, डेटा करप्ट भी नहीं हो सकता, तो क्या उनको ट्रस्ट बिल्ड होगा या नहीं होगा बताइए। यही वो वजह है जिसकी वजह से बिटकॉइन नाम की टेक्नोलॉजी, जो कि ब्लॉकचेन पे बेस्ड मॉडल है और ब्लॉकचेन की एक रियल एप्लीकेशन है, अगर आप इसकी बात करें तो जैसे अगर आपने सुना होगा एक बिटकॉइन की जो कीमत है इसमें लगभग 33 लाख रुपए है। अब सोचिए बिटकॉइन का नंबर, जैसे नोट का एक नंबर होता है ऐसे बिटकॉइन में भी एक बिटकॉइन एक नंबर है, सिंपल डिजिटल नंबर है। उसकी कीमत अगर आप देखेंगे वो 33 लाख रुपए के लगभग आसपास चल रही है। अगर आप इसको पहले देखना चाहो तो पहले अगर मैं मान लीजिए आपको स्क्रीन शोकेस करता हूं, अगर मान लीजिए एक और स्क्रीन, 1 मिनट के लिए रुकिए, मैं आपको एक स्क्रीन और देता हूं जिससे आप इस आइडिया जो मैं कहना चाह रहा हूं आपसे शायद आप मेरी समझ पाए बात को। अगर हम बात करते हैं 1 BTC टू INR, आप जरा चेक करिए एक रुपये कितने का चल रहा है, देखिए 37,44,217 रुपए का एक बिटकॉइन है, जो कि एक सिंपल एक नंबर होता है, वो कुछ नहीं होता है, सिंपल सा एक नंबर आप देखें तो इस वक्त जो एक्सचेंज रेट चल रहा है इस वक्त ये लगभग 37 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है, जो कि सिंपल एक नंबर है, जैसा नोट का नंबर होता है, एक वर्चुअल नंबर है। जो इस वक्त आपका अगर ये ट्रस्ट बिल्ड ना होता और इतने सारे लोग ट्रस्ट ना कर रहे होते हैं टेक्नोलॉजीज के ऊपर, तो सोचिए वर्चुअल नंबर खरीदने के लिए कोई क्या 37 लाख रुपए देगा। ये जो ट्रस्ट है ये बहुत बड़ी चीज है। तो अगर आपको कोई भी एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन बनानी है जिसके अंदर 100% ट्रस्ट होना चाहिए लोगों को, तो उन टेक्नोलॉजीज के पीछे ये सारी टेक्नोलॉजी काम करती है। इसमें एक एक कंसेप्ट बहुत है, ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा सोल्यूशन। साथ साथ एक देखिए यहाँ पे एक जो नई फीचर ऐड हो रही है वो है थर्ड पार्टी रिमूवल। अब ब्लॉकचेन के अंदर एक खास बात क्या है कि ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये आपका नेटवर्क इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट दुनिया में हर जगह, तो आपको पता ही। इसीलिए अगर बहुत सारे ऐसे काम हैं जहां पे पहले थर्ड पार्टीज का यूज किया जाता था बहुत सारे कामों को करने के लिए, जैसे याद करिए जब कार खरीदते हो तो आपको आरटीओ चाहिए, आप कोई जमीन खरीदते हो तो आपको सरकार चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सरकार एक स्टाम्प ड्यूटी लेती है और आपसे ये कहती है कि भाई अगर कोई कल आपके मशीन पे जमीन पे कब्जा करेगा तो हमारे पास प्रूफ है कि हाँ भाई ये जमीन तुम्हारी है, हम कोर्ट के आदेश के बता देंगे भाई जमीन इसकी नहीं इसकी नहीं। तो जो आपका, इसीलिए आप एक तरह से जो आप टैक्स पे करते हो या जो स्टाम्प ड्यूटी पे करते हो 8 से 12% की, सोचिए आप अगर 1 करोड़ का फ्लैट आप खरीद रहे हो तो समझ लीजिए 8 लाख रुपए आपको सरकार को देने पड़ेंगे। आप कोई कार खरीदते हो तो समझ लीजिए 75,000 रुपीज के करीब लगभग आपको टैक्स पे करना पड़ता है, आरडीओ। ये बीच में थर्ड पार्टीज हैं। आप याद करिए जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा आप ट्रांसफर करते हो उसको रेमिटेंस बोलते हैं। सपोज आप यूएस में जॉब कर रहे हो और इंडिया के वहां से जो सैलरी आ रही है उसका पैसा आप इंडिया में भेज रहे हो अपने पेरेंट्स के पास, तो वो रेमिटेंस कहलाता है। उसमें लगभग 4 से 5% पैसा आपको बीच की पार्टी को देना पड़ता है, जो बीच की बैंकिंग होती है, इंटरनेशनल बैंक होती है, उनको देना पड़ता है। ये जो बीच का पैसा है आप उसको खत्म कर सकते हो। ये जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंटरनेट बेस्ड टेक्नोलॉजी है, इसमें बेटा एक कंट्री दूसरे कंट्री का कोई बैरियर ही नहीं है। जैसे आरबीआई का इसमें कोई बैरियर ही नहीं है, वीजा का कोई बैरियर नहीं है। इन सबके बिना भी डेटा आप एक दूसरी जगह को भेज सकते हो, पैसा भी भेज सकते हो या डेटा भी भेज सकते हो, एक दूसरे थर्ड पार्टी के बिना भी डेटा भेज सकते हो। और डिजिटल करेंसी तो इसका बहुत बड़ा यूज केस है। और शायद आपने अभी लेटेस्ट सुना भी हो, गवर्नमेंट इंडिया के अंदर भी प्लानिंग चल रही है कि जैसे रुपीज हमारा होता है, रुपीज का डिजिटल वर्जन जैसे बिटकॉइन है, उसी तरह से डिजिटल रुपी आने की तैयारी चल रही है। अभी मैं आपको ड्राफ्ट शो करूंगा, अभी आपको अभी कुछ दिन पहले अभी एक नया ड्राफ्ट अभी इंडिया में लॉन्च हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इंडिया के अंदर अभी चलेंगे तो इंडिया के अंदर लास्ट ईयर में काम स्टार्ट हुआ था। तो अगर आप देखेंगे तो सबसे एक नीति आयोग का नाम सुना हुआ इंडिया के अंदर, जो सबसे ज्यादा इस एरिया में काम करता है। तो उन्होंने पहली स्ट्रेटेजी हमारी बिल्ड की थी लास्ट ईयर। अगर आप डॉक्यूमेंट देखेंगे ये, तो डॉक्यूमेंट से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट लास्ट ईयर ये जनवरी में रिलीज हुआ था, पहला डॉक्यूमेंट इसका। इस डॉक्यूमेंट को देखिए, नीति आयोग का सरकारी डॉक्यूमेंट है, मेरा प्राइवेट डॉक्यूमेंट नहीं है ये नीति आयोग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इसकी स्ट्रेटेजी बिल्ड करता है। जरा ये देखिए, ब्लॉकचेन इंडिया स्ट्रेटेजी 2020 में ये लॉन्च हुआ था जनवरी में, ये पहला इसका देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर। आप देख लीजिए क्या कहना चाह रहे हैं। तो डॉक्यूमेंट कब का आप गौर कर सकते हो, ये पार्ट 1 है जो 2020 में लॉन्च हुआ था। अगर लेटेस्ट की बात करेंगे तो अभी पिछले महीने ही ये उसी स्ट्रेटेजी की बिल्ड हुई है। वो स्टार्ट था पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 बिल्ड हुआ है, जिसके अंदर रूल्स बिल्ड हो रहे हैं कि इंडिया के अंदर अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी लागू होगी तो कैसे लागू होगी। दिस इज नेशनल स्ट्रेटेजी ऑफ ब्लॉकचेन। इंडियन गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, मेरा पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं है। कौन करी, ये अभी पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है। दिस इज, आप देख सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कनेक्शन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और ये डॉक्यूमेंट कब का है, इसके नीचे सबसे भी नीचे लिखा भी हुआ है, थोड़ा सा इसके नीचे आ रहा है डॉक। मैं थोड़ा सा इसको 1 मिनट देखता हूँ ऊपर कैसे होगा।
ये आपको ये देखिए नीचे इसके नीचे आ रहा है, थोड़ा सा छुप रहा है नीचे। ये आपका जनवरी 2021 है इसके पीछे, क्योंकि यहाँ मुझे दिख नहीं पा रहा है, यहाँ इसके नीचे हाइड कर रहा है और ये बार बार लगातार भाग रहा है। तो इसलिए ये जनवरी 2021 का डॉक्यूमेंट है, यानी पिछले महीने ही ये स्ट्रेटेजी बिल्ड हुई है। इसमें बहुत सारी डॉक्यूमेंट है कि इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन अगर लागू होगी तो क्या लीगल रिफॉर्म्स होंगे, जैसे कि आपका अलग अलग साइबर सिक्योरिटी के नियम, ऐसे इनके पूरे नियम आ रहे हैं। इंडिया के अंदर ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क कैसे काम करेगा, ये नेशनल लेवल की बात होगी। तो ब्लॉकचेन कोई हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी नहीं है, ये बहुत ही वाइड टेक्नोलॉजी है जो यूज की जा रही है अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। एक सेकेंड रुकिए, एक मिनट की प्रेजेंटेशन शायद हो गया, मैं दोबारा स्टार्ट कर। ये पॉइंट कुछ कुछ क्लियर हो रहे हैं आप लोगों को, नहीं हो रहे हैं बताइए। रेस्पॉन्स कैसे लिया जाए, मानी जी पता कैसे चले कि हाँ लोग इसको समझ पा रहे हैं, या जो मैं इसका कोई पैटर्न है। हेलो बताइए। मैम थोड़ा सा बिजी हैं तो मैं एक बार बच्चों से पूछ लेता हूँ। बेटे कोई क्वेरी है तो आप अपना चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। देखिए जब तक इंटरेक्टिव नहीं है तो मजा नहीं आता ना, पता नहीं चलता हाँ कि बेटे क्या जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो सर को नहीं मालूम पड़ेगा कि हाउ मच यू आर गेटिंग, राइट। तो जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्वेरी है, प्लीज चैट बॉक्स में रख दें। यदि आप हेजिटेट कर रहे हैं यदि पूछने में तो चैट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। चलिए कोई क्वेरी सर नहीं अभी आ आप रही है कैरी इसका ऑन मतलब ये कीजिए, असल में मैं एक बार फिर से इस पे चैट बॉक्स में नहीं, डालता रीजन क्या होता है ना, ये वन वे हो जाता है ना, वन वे में कभी भी हाँ वेबिनार वन वे फ्रूटफुल में नहीं फिर होती। वो जी 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 तो ये तो क्लासरूम टीचिंग हो गई, और वेबिनार नॉट ए क्लासरूम टीचिंग। हाँ वन वे ये कम्युनिकेशन हो सबसे बड़ी गई, दिक्कत सही है। कह रहे, राइट। तो इंटरेक्शन उतना नहीं, इंटरेक्टिव नहीं होता ना, फिर थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ बिल्कुल पे जो वर्ड हमने यूज किया था, याद करिए, इसका नाम था डिजिटल डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। तो लेजर तो मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे, शायद सुना होगा। जब भी आप लोगों ने कभी स्कूल में फीस जमा कराई होगी या कॉलेज में फीस जमा कराई होगी, कम से कम आपने देखा होगा, तो वहां पे एक डॉक्यूमेंट होता है, इसको जनरल लेजर बोलते हैं। जब भी आप कुछ भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वहां पे देखिए ट्रांजेक्शन लिखा जाता है, किस डेट को किसने कितने पैसे जमा करे, क्या हुआ, क्या डेबिट हुआ, क्या क्रेडिट हुआ। ये लेजर का पेज होता है जनरल लेजर का। जिन्होंने कभी इस तरह का पेज कभी देखा उसको जनरल लेजर बोलते हैं। ये जो लेजर्स होते हैं आपने देखा होगा इस तरीके से, जो अगर जो अकाउंटेंट्स होते हैं हमारे पास, ये मोस्टली उसको तैयार करते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है, देखिए इसमें जो डेटा है वो मॉडिफाइबल है। यहाँ पे कट करके मोस्टली लोग क्या करते हैं, कई बार तो कच्ची पेंसिल से लिखते हैं, जब 31 मार्च से निकल जाता है तब उसको पक्के पेन से लिखते हैं। ये जो डेटा अनसिक्योर है, पेज को फाड़ के दूसरा पेज कोई लगा देता है, क्या कर लोगे आप इसको। साथ साथ यहाँ पे एक और चीज है, मल्टीपल एंट्रीज। मल्टीपल एंट्रीज का मतलब क्या, देखिए सपोज एक कोई ऑर्गेनाइजेशन का केस लीजिए आप। मान लीजिए आप डाबर का केस लेते हैं। डाबर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। हम उसमें से एक प्रोडक्ट चूज करते हैं, उसका नाम है हनी। शायद मेरे ख्याल से डाबर का हनी सब लोगों ने सुना होगा, जो आप लोगों के घरों में भी आता होगा, हो सकता है कुछ लोग परचेस भी करते हो, या नहीं तो सुना जरूर होगा डाबर का हनी आता है। अब ये सोचिए कि क्या डाबर का हनी के लिए जो डाबर कंपनी है, क्या मधुमक्खी वो अपने यहाँ पालती होगी कोई ऐसा। तो बहुत सारे लोग हैं जो मधुमक्खी पालते हैं, जो सप्लाई करते हैं अलग अलग जगह से जो आपका शहद होता है, और वो फिल्टर किया जाता है डाबर की ऑर्गेनाइजेशन मशीन के थ्रू, और फिर बाद में पैकिंग करके आप तक आता है। अब ये सोचिए उसमें भी डिपेंड करता है क्वालिटी, जो मधुमक्खी है वो किस एरिया की है, वहां पे कौन कौन से फूल अवेलेबल है, उसी के हिसाब से शहद की क्वालिटी होती है। शहद की क्वालिटी सेम नहीं होती कभी, ध्यान रखिए, दैट्स डिफरेंट। अब किसी वजह से अगर कोई पर्टिकुलर शहद कुछ इस तरीके का आ गया कि उसको खाने से कोई कस्टमर बीमार हो गया सपोज, अब आप कैसे ट्रेस करोगे कि वो पर्टिकुलर जो आपका शहद आया था वो कौन से शहद वाले के यहां से आया था, और उसने लगभग आसपास जो मधुमक्खी है वहां पे कौन से फूल का उन्होंने रस चूसा था जिसकी वजह से वो बंदा बीमार पड़ा। क्या आपसे ट्रेस कर पाओगे कभी भी। रीजन क्या हो रहा है यहाँ से, यहाँ पे देखिए मल्टीपल एंट्रीज है। रीजन क्या होता है मल्टीपल एंट्रीज का, कि जिस पर्टिकुलर शहद वाले से जो डेटा आ रहा है वो बीच में कोई ना कोई ब्रोकर होगा जो वहां से डेटा कलेक्ट करता होगा। वो डेटा हमारा जो इन्फॉर्मेशन है वो देता होगा डाबर को। डाबर का अपना एक डेटाबेस होगा जहां पे जो जहां जहां से डेटा आ रहा है वो अपने डेटाबेस में उसको मेंटेन करते होंगे। फिर वहां से डेटा डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, जहां से जो आपका जो शहद है उसका एक मेजर बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर रहा होगा, जहां पे सारे के सारे बड़े बड़े पैकेट जो सप्लाई होते होंगे, उसका अपना एक डेटाबेस होगा जहां वो डेटा को मेंटेन करता होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटर से डेटा रिटेलर के पास आया, रिटेलर अपना एक पर्सनल डेटा मेंटेन करता है। आपस में वो डेटा इंटीग्रेटेड ही नहीं है, जिसकी वजह से कल अगर मुझे शहद वाले को ढूंढना है कि किसकी वजह से बंदा बीमार पड़ा, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, उसको पहचानना आसान खेल नहीं है।
आप सोचिए, जो कि एक आज की डेट में जितनी भी आप कोई भी चीज खा रहे हो, पी रहे हो, इसमें बहुत सारे केसेस हैं जहां पे ट्रेसेबिलिटी की आपकी बहुत ही रिक्वायरमेंट होती है। इससे एक दिक्कत क्या हो रही है, क्योंकि इसमें ट्रेसेबिलिटी नाम की फीचर नहीं होती, जिससे डिफिकल्ट टू वेरीफाई। शायद मोस्टली जो डेटा होता है सिंगल हैंडेड होता है, तो इन सब चीजों को और साथ साथ इसको आप डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। लेकिन अगर हम एक सिंगल डेटाबेस ऐसा बिल्ड करते हैं कि जिसके अंदर चाहे आपका डावर का कोई डेटा हो, चाहे आपका ये स्टॉक होल्डर्स हो, चाहे आपका रिटेलर हो, चाहे डिस्ट्रीब्यूटर हो, सभी का डेटा अगर एक सिंगल लेजर में आ जाए, तो इसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे एक सिंगल लेजर हम बिल्ड करते हैं, सारा का सारा जो डेटा वो एक लेजर में मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से ट्रेस करना की जो बहुत ही आसान हो जाता है। इसके लिए अगर आप केस देखेंगे तो कुछ केसेस में आपको एक लाइव कर देखना चाहेंगे। IBM एक कंपनी है जिसने बहुत सारे प्रोडक्ट बिल्ड किए हैं इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए, जहां डेटा को हम ट्रेस कर सकते हैं यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये कुछ एरियाज हैं जहां पे ब्लॉकचेन को आप यूज कर सकते हो, ये यूज केसेस कहलाते हैं। तो अगर आप देखेंगे डिजिटल राइट आप जैसे जानते हो कि आपने कोई गाना लिखा, अब वो गाना आपका ये कैसे लिखा, कैसे पता चलेगा आपकी कोई किताब लिखी है आपने, किसने लिखी, उसके डिजिटल राइट्स होते हैं। अगर आप देखें, आप वोटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, वोटिंग का आप कैसे देख सकते हो, जो वोट है कोई बंदा डाल रहा है तो उसी बंदे ने वोट डाला है, कैसे पता। आपके हेल्थ के रिकॉर्ड्स हैं, अगर आप चाहते हो कि मेरे हेल्थ रिकॉर्ड सिक्योर रहे और मैं जिसको चाहूँ डॉक्टर को उसी को दिखाऊं और मेरा डेटा हेल्थ का कभी लॉस ना होने पाए, टाइटल को जमीन के जो रिकॉर्ड होते हैं टाइटल रिकॉर्ड्स बोलते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां पे आप इनको यूज कर सकते हो। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो यहाँ पे दिए गए हैं, ये अलग अलग एरियाज हैं। साथ साथ यहाँ पे खास तरह के एक कोडिंग होती है, इसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक खास कोड होता है जो पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, और जैसे कि हम एक एग्रीमेंट्स बनाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उनके बेस पे आप काम कर सकते हो। और डेटा जैसे कि आप पेटीएम से कोई पेमेंट करते हो तो आपको ये भरोसा होता है कि भाई ट्रांजेक्शन आईडी अगर मेरे पास है तो उसमें कोई भी ट्रेस कर लूंगा। तो पर ट्रांजेक्शन आईडी किसी बंदे ने नहीं पैदा करी, आपने एक सिस्टम से आपने कोई चीज एग्जीक्यूट करी होगी, वहां पे कोई कोड एग्जीक्यूट हुआ होगा, उस कोड ने डेटा सेंड किया होगा, आपने एक रेफरेंस नंबर किसी इंसान ने नहीं भेजा, ध्यान रखिए, उसके पीछे एक सॉफ्टवेयर काम कर रहा है, एक फंक्शन कॉल हुआ है जिसने उस आईडी को जनरेट किया है, और उसी ट्रेस आईडी से आप कुछ भी ट्रेस कर सकते हो। उसी तरह से यहाँ पे भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नाम का खास प्रोग्राम्स होते हैं और जो खास फंक्शंस होते हैं, वी कॉल देम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जो हमारे लिए काम करते हैं। और इन कॉन्टेक्स्ट की बेसिस पे ही बहुत सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं, जो हमें करने की कोई जरूरत नहीं होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो। अलग अलग कोर एरिया 4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सिक्योरिटी, डिजिटल करेंसी, रिकॉर्ड कीपिंग, ये 4 बहुत ही कोर एरियाज हैं। ऐसे इसके बहुत सारे यूज केसेस हैं ब्लॉकचेन के, जो आप देख सकते हो। बात आती है कि ब्लॉकचेन लगभग कितने तरह की मार्केट में है। इसमें 3 हिस्सों में मेजर इनको कैटेगराइज किया जाता है। पब्लिक, या उसको कहते हैं परमिशन लेस ब्लॉकचेन, जिसको कोई भी यूज कर सकता है, इसमें किसी परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे बिटकॉइन आपने सुना है, इथेरियम सुना है, लाइटकॉइन सुना है। इस तरह की हंड्रेड्स ऑफ ब्लॉकचेन्स हैं जो पब्लिकली अवेलेबल है, एनीबडी कैन यूज इट, उसके लिए कोई लाइसेंस, कुछ भी चीज की कोई भी जरूरत नहीं होती, आप यहां से इसको आराम से एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट, या उसको कहते हैं परमिशन ब्लॉकचेन, जैसे हम कहते हैं कि नहीं, केवल पर्टिकुलर काइंड ऑफ पीपल ऑन द ऑर्गेनाइजेशन या जो भी नेटवर्क से जुड़े हैं, केवल वही लोग उसको एक्सेस कर पाए, कोई और इसको एक्सेस न कर पाए। इसको प्राइवेट और परमिशन, जैसे हाइपरलेजर एक आपका ब्लॉकचेन नेटवर्क है जिसके अंदर हाइपरलेजर फैब्रिक एक खास एक नाम है, साबूत, जैसे इसके अलग अलग हाइपरलेजर के अंदर अलग तरह के प्रोजेक्ट्स है। फैब्रिक उसमें से एक प्रोजेक्ट का नाम है, साबूत एक प्रोजेक्ट का नाम है, या मल्टी चेन का नाम सुनेंगे। तो ये हमारे केसेस हैं जिसको हम कहते हैं प्राइवेट ब्लॉकचेन। एक कहलाता है कंसोर्शियम ब्लॉकचेन, जहां पे कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, जैसे EWF है, एनर्जी वेब फाउंडेशन। तो एनर्जी से रिलेटेड जो आपकी सोलर एनर्जी है पर्टिकुलरली, ये उसके लिए बनाया गया था। जो भी एनर्जी से रिलेटेड जो फाउंडेशन है, जो कंपनीज हैं, दे आर ग्रुप ऑफ EWF, एक ग्रुप मिलकर काम कर रहा है, जो अपना डेटा, सारा का सारा डेटा, जहां भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, कहाँ हुई, किससे कस्टमर को उसने बेची, ये सारा का सारा डेटा ब्लॉकचेन पे आज की। सोलर एनर्जी भी बिकती है, बहुत सारी एनर्जी बिकती है आज की डेट में, तो वही चीज यहाँ पे भी है। तो एनर्जी वेब फाउंडेशन क्या करता है, उनके सारे डेटा को ब्लॉकचेन में मेंटेन करता है, कि कल कोई ये ना कह सके कि भाई मेरी बिजली इतनी बनी थी, उसमें जितना पेमेंट नहीं मिला मेरा। उसके लिए कंसेप्ट ये बनाया गया। देन कोड R3, ये स्पेशली फाइनेंशियल सेक्टर के लिए, ये बहुत सारे बैंक इसके मेंबर है, और जो भी आप, जैसे आपने सुना है कि एक चेक आप डालते हो एक बैंक का दूसरी बैंक में जाकर वो क्लियर होता है, उसी तरह के सिस्टम्स आप इन्होंने बैंकों ने बनाया, जैसे कि फास्ट क्लियरिंग वगैरह की जा सके, डेटा को मैनेज किया जा सके। जैसे कोई एक बैंक में बंदा फ्रॉड कर देता है, दूसरी बैंक को पता नहीं चलता, लेकिन कंसोर्शियम्स होने की वजह से यहाँ ऐसा नहीं कर पाओगे आप। तो जो भी इसकी बहुत सारी बैंक इसकी मेंबर है, कोड R3 जो ब्लॉकचेन है हमारी। तो अगर कोई भी बंदा एक बैंक के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करता है, दूसरी बैंक को पता होता है कि इस कस्टमर ये हमारे ओवरऑल कंसोर्शियम का पार्ट है। तो बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं जो सारी सिक्योरिटी मॉडल्स को यूज कर रही हैं, जो मार्केट में मौजूद है।
ये केस है जो आप देख रहे हैं बिटकॉइन। तो बिटकॉइन के अंदर सिर्फ दो बातें हैं। ये बिटकॉइन एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म का मतलब है ये डीएलटी का यूज करेगा, P2P मॉडल पे काम करेगा, एक साथ एक मशीन में डेटा चेंज करोगे, हजारों मशीन डेटा जाएगा। साथ साथ एक चीज है इसके अंदर, इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। जो मैंने अभी बताया था कि एक आपका क्रिप्टो करेंसी, एक जो बिटकॉइन है, इट्स वेरी इक्वल टू 37 लाख। अब आज का रेट है, अगर हम जो लेटेस्ट रेट आपको दिखा रहे हैं, तो ये इसके अंदर ये प्लेटफॉर्म भी है, साथ साथ एक क्रिप्टो करेंसी। इसको आप परचेस कर सकते हो, इससे आप कुछ बाय कर सकते हो, आप इससे डॉलर में कन्वर्ट कर सकते हो, आप इसको रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये जैसे कि आपका डॉलर और रुपीज एक करेंसीज है, उसी तरह की ये डिजिटल करेंसी है और ये क्रिप्टो पे बेस्ड है। अब आखिर ये क्रिप्टो क्या चक्कर है, क्रिप्टो क्या कहना चाह रहा है? जैसे इथेरियम की बात करते हो आप, इथेरियम के अंदर एक नई चीज है, इसको कहते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन ये क्रिप्टो करेंसी भी है, साथ साथ इसके पीछे काम कर रही है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसके अंदर आप देखेंगे तो वहां क्रिप्टो करेंसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे मैंने कहा था हाइपर लेजर प्रोजेक्ट्स, हाइपर लेजर के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। अगर आप देखेंगे ब्रो, फैब्रिक, ग्रिड, इंडी, इरोहा, साबूत, नीचे देखेंगे ये एप्लीकेशंस हैं, ये आपके फ्रेमवर्क्स हैं। अगर आप इनको जो भी नाम बता रहे थे, मैं साबूत लिखा था, मैंने आपको याद करिए, अभी मैंने फैब्रिक लिखा था। इसी तरह के और बहुत सारे प्रोजेक्ट है, इंडी है, इरोहा है, इनके अलग अलग, जैसे ये मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए बनाया गया मैंने, ये आइडेंटिटी, जैसे आपका आधार कार्ड है, आप आधार कार्ड की भी सिक्योरिटी और बेटर होने जा रही है कि उसके साथ और एक और प्रोजेक्ट वगैरह, इसका नाम इंडी। ये सब ओपन सोर्स प्रोजेक्ट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मेनली यूज कर रही है हाइपरलेजर फैब्रिक प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल कर रही है, जो उसके पीछे एक बॉडी काम कर रही है, लिनक्स फाउंडेशन। आपने लिनक्स नाम का सॉफ्टवेयर सुना होगा, कोई इसी फाउंडेशन। आपने नोड जीएस सुना होगा, ये नोड जीएस जो है ये भी लिनक्स फाउंडेशन का प्रोडक्ट है। अलग अलग तरह की बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो यहाँ पे बिल्ड की जा रही है, जो आप अपने लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे हाइपरलेजर एक्सप्लोरर है, तो हाइपरलेजर अलग अलग तरह जो भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे आप यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो यहाँ पे बिल्ड किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे कंसेप्ट आ रहा है चीन कोड, जिसको हम यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं, उसी को यहाँ पे चीन कोड बोलते हैं। लेकिन इसमें किसी क्रिप्टो करेंसी का कोई इस्तेमाल नहीं होता। याद करिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी कुछ साल, आरबीआई ने जो आपका बिटकॉइन और इथेरियम वगैरह जो क्रिप्टो करेंसी को बैन कर दिया था, हालांकि लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने इसको खोल दिया। तो क्रिप्टो करेंसी का, क्योंकि जो, और हमने अभी आपको कहा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑलरेडी ब्लॉकचेन को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज कर रही है, लेकिन वो आपका इथेरियम या बिटकॉइन को यूज नहीं कर रही है, वो हाइपरलेजर फैब्रिक के प्रोजेक्ट्स को यूज कर रही है, क्योंकि इसके अंदर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की कोई भी नीड नहीं होती। कोई आपको बिटकॉइन नहीं चाहिए, कोई आपको इथेरियम नहीं चाहिए, कोई क्रिप्टो करेंसी की कोई नीड नहीं होती है। क्रिप्टो तो है, पर क्वेश्चन ये है कि आखिर ये क्रिप्टो क्या चक्कर है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या चक्कर है, थोड़ा सा इसके बारे में अगर हम जानेंगे तो थोड़ा सा और क्लियर होंगे। तो पहले मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट कर देता हूं, देन आई विल शो यू सर्टेन सेट ऑफ सॉफ्टवेयर, ये कैसे काम करते हैं, ये क्रिप्टो करेंसी का क्या चक्कर है, क्रिप्टो कहते किसको है, क्रिप्टोग्राफी होती क्या है। तो थोड़ा सा अगर हम क्रिप्टोग्राफी के बारे में अगर थोड़ा सा जानने की अगर कोशिश करें, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा समझ पाओगे। तो मैं थोड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको बता देता हूँ। क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी होती है जिसके थ्रू हम डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इस तरह से एनक्रिप्ट कर देते हैं कि कोई डेटा उसको पहचान ना सके आगे ये इंफॉर्मेशन क्या है। इसके लिए अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज हैं। इसमें दो तरह की मॉडल उसमें काम करते हैं, एक को सिमेट्रिक बोलते हैं, एक असिमेट्रिक बोलते हैं। मतलब क्या है इसके अंदर केस, कि जैसे कि अगर आपने देखा कोई पर्टिकुलर खिलौना होता है, उस खिलौनों को आप तोड़ के वापस टुकड़ा में जोड़ सकते हो, वापस को फिर से खिलौना बना सकते हो। तो कुछ टेक्नोलॉजी ऐसी होती है इसमें एनक्रिप्ट भी कर सकते हो, साथ साथ डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। जैसे किसी ने, अगर आपने नाम सुना हो बेस64, बेस64 एक तरह की एल्गोरिथम है, सिक्योरिटी एल्गोरिथम है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम है, जिसमें आप डेटा को एनक्रिप्ट भी कर सकते हो, डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। अगर मैं आपको बेस64 की बात करता हूँ, तो बेस64 अगर मैं पहले एनकोडिंग की बात करता हूँ, ये एनकोड डिकोडर ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री टूल्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको आप यूज कर सकते हो। तो मैं पहले गूगल पे जाता हूँ, क्योंकि ये याहू का सर्च इंजन है, थोड़ा गड़बड़ है। तो अगर हम बात करते हैं बेस64 टू स्ट्रिंग कन्वर्जन लेते हैं, सपोज आपका ये एनकोड डिकोड प्लेटफॉर्म सब ऑनलाइन अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए बेस64 डिकोडिंग एनकोडिंग दोनों तरह से होती है, कि हमें एनकोड करना है या डिकोड करना है। तो यहाँ से लिखते हैं डिकोड फ्रॉम बेस64, और यहाँ इसको एनकोड भी ले लेते हैं, ये डिकोड है, इसी तरह से एनकोड भी होगा। बेस64 डिकोड ऑनलाइन टूल, ये देखिए, चलो यहाँ लिखते हैं बेस64 डिकोड, एनकोड भी होगा यहाँ पे, एनकोड एनकोड एनकोड, ये रहा एनकोड, नहीं ये रहा बेस64 एनकोड। ये देखिए, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा लिखा, एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज एनसीए डिपार्टमेंट, ये देखिए ये मेरा टेक्स्ट है नॉर्मल, यहां से हमने लिखा एनकोड, ये देखिए एनकोड होके क्या स्ट्रिंग बन गई मेरी। अगर मैं किसी को जब इसके बारे में कोई डेटा बात करना चाहता हूँ और मैं किसी को ये भेजता हूँ, तो नॉर्मली खुली आंखों से इसको पढ़ पाएगा क्या, आप ये बताइए।
दिस कॉल्ड एनक्रिप्शन या एनकोडिंग। ये एक एनकोडिंग है। जब ये डेटा दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो उसको कहते हैं डिकोडिंग। तो अगर मैं यहां डालूंगा तो जो देखिए मुझे डाटा क्या मिल गया मेरे। तो ये एक मॉडल है जिसके अंदर डेटा को आप एनक्रिप्ट भी कर सकते हो, आप डिक्रिप्ट भी कर सकते हो। ये वो वाला मॉडल है कि आपने किसी खिलौने को तोड़ दिया टुकड़ों में और बाद में उसको असेंबल करके फिर से आपने उसको कार बना दी। जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे खिलौने आते हैं इस तरह की, जिनको आप तोड़ फोड़ कर सकते हो। लेकिन आप ये सोचिए कि चलो ठीक है यहाँ तो पॉसिबल है, लेकिन आप सोचिए कि आपने किसी भी, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आपने दूध लिया, दूध से दही बना दी। क्या दही को वापस दूध बना सकते हो आप लोग? नहीं बना सकते। आप दूध से दही बना सकते हो पर वापस दही से दूध नहीं बना सकते। एंड दिस कॉल्ड अनदर मॉडल, जिसको कहते हैं हम लोग असिमेट्रिक मॉडल, जहां पे डेटा को आप एक तरह से एक इस तरह से कर सकते हो, डेटा को आप एनक्रिप्ट कर सकते हो पर आप उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकते। उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। अगर उसकी बात करें, आपने एसएचए का नाम सुना हो, सिक्योर्ड हैश एल्गोरिथम कहते हैं इसको। तो अगर हम बात करते हैं SHA 25, इसमें बहुत सारे एल्गोरिथम्स हमारी, सबसे सिंपल जो एल्गोरिथम्स हैं जो यूज की जाती है इसको कहते हैं SHA। बहुत सारे तरह के एल्गोरिथम्स होती हैं, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे इनको। एक सेकेंड रुकिए, मैं आपको एक कॉमन दिखाता हूँ जिसमें कि सभी एक ही जगह से आप बहुत सारी एल्गोरिथम्स आप यूज कर सकते हो। एक सेकेंड रुको। SHA एल्गोरिथम ऑनलाइन पासवर्ड जनरेटर कोडिंग टूल्स। चलिए यहां से दिखाता हूँ। अब देखिए इसमें अलग तरह के एल्गोरिथम्स आ रही हैं। इससे अंतर क्या होता है कि यहां से कोई डेटा अगर हम डाल रहे हैं, सपोज हमने डेटा डाला 1 2 3 4, या जैसा अभी हम एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज लिख रहे थे, हमने लिखा एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज। नीचे देखिए जरा, जब डेटा को आप एनक्रिप्ट करते हो तो ये लगभग ये आता है। अब इससे वापस आप इसको नहीं बना सकते, ये वन वे होती है, ध्यान रखिए। तो यहां से डेटा अगर हम किसी को अगर ये दे देंगे तो क्या वो समझ पाएगा ये एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज है? सबसे बड़ी इसमें एक और खास बात क्या होती है, इसके अंदर एक खास तरह का इफेक्ट होता है, उसको करना होता है एवलांच इफेक्ट। एवलांच इफेक्ट क्या कहता है, हल्का सा भी किसी कर्टर में माइनर सा भी चेंज करोगे, देखो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बदल जाएगा। कोई गैस नहीं कर सकता कि अगर ये था तो ये अगला करैक्टर एक और ऐड हुआ होगा तो ये हो गया। उसका खास एक नाम होता है एवलांच इफेक्ट। ये बहुत ही सिक्योर मॉडल होता है। अगर जैसे इसके अंदर आप देखेंगे तो ये लगभग 40 बिट का डेटा है। अगर इसी को अगर किसी और एल्गोरिथम पे कन्वर्ट करोगे तो ये साइज बढ़ जाएगा, देखिए ये 64 बिट में चला जाएगा। अगर मैं फिर से लिखता हूँ एबीएस इंजीनियरिंग कॉलेज, अब गौर करिएगा, देखिए अब देखिए लेंथ बढ़ गई इसकी एनक्रिप्ट डेटा की। तो जितना ज्यादा बड़ा डेटा एनक्रिप्टेड होगा उतना ही उसको डिकोड करना मुश्किल होगा, उसको पकड़ना उतना ही मुश्किल होगा। तो ये खाली जैसे ये बैकग्राउंड में कर रहा है तो कर कैसे रहा है इसके पीछे जितना भी हम डेवलपमेंट करते हैं, तो आपने सुना होगा कुछ लैंग्वेजेस हमारी काम आती है। इट कुड बी पाइथन, इट कुड बी जावा, इट कुड बी नोड जेएस। डेवलपमेंट आप किसी भी भाषा में कर सकते हो। तो अगर मैं मान लीजिए कुछ सैंपल आपको शोकेस करता हूँ कि क्रिप्टोग्राफी आप किसी भी लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, तो आई कैन जस्ट शो यू सम डेमोस जिससे क्रिप्टोग्राफी क्या होती है तो उसके बारे में आप जान सकें। तो मान लीजिए ये आपका क्रिप्टोग्राफी का एक सैंपल्स मैंने आपके लिए बनाए हैं। एक पहला सैंपल हम दिखाते हैं आपको पाइथन से। शायद हो सकता है इनमें से कोई लैंग्वेज आप जानते हो नहीं जानते हो, डजंट मैटर, लेकिन अगर थोड़ा सा आइडिया आप देखोगे तो आप समझ पाओगे। तो कुछ नहीं होगा आपके पास, देखिए नोटपैड जरूर होगा। तो ये एक छोटा सा हमने पाइथन का एक प्रोग्राम है जो हमने यहाँ पे दिया। ये आपका गिटअप पे भी मौजूद है। अगर आप गिटअप पे देखोगे तो ये गिटअप के ऊपर सारे सारी लाइब्रेरी मौजूद है। आप यहाँ से इसका यूआरएल नोट कर सकते हो। तो गिटअप के ऊपर मेरा ये पेज है, डॉक्टर बीपी शर्मा के नाम से अकाउंट है मेरा। उसके अंदर जाओगे तो वहां पे एक मिलेगा ब्लॉकचेन बाय डॉक्टर बीपी शर्मा, और उसके अंदर मिलेगा हैशिंग टेस्ट, उसके नाम से पाइथन की फाइल। जो भी फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारे के सारे गिटअप पे मौजूद हैं। तो अगर आप वहां से लेना चाहते हैं इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज की है हमने, इसका नाम है हैशलिब। हैशलिब के अंदर से पहले मैंने डेटा इसके बेस पे सारी एनक्रिप्टेड के सारे जो फंक्शन अभी आप देख रहे थे वहां पे, वो सब यहाँ अवेलेबल है। MD5, SHA1, SHA256, SHA512, ये सारे बिल्ट-इन फंक्शन है। लाइब्रेरी का नाम है हैशलिब। तो अभी हमने देखिए क्या बोला इसको कि भाई यूजर से एक डेटा लाओ, किस चीज को आप एनक्रिप्ट करना चाहते हो। वो डेटा हमने लिया, डेटा को पहले हमने एनकोड किया और उसको हमें बाइनरी में कन्वर्ट। एनकोड का मतलब है ये बाइनरी डेटा में कन्वर्ट। ये टेक्सचुअल डेटा होता है, याद करिए कुछ भी आप हेलो हाय लिखते हो वो टेक्सचुअल डेटा होता है। उसको पहले आपको बाइट अरे में क्रैक करना होता है और फिर जो बाइट अरे में डेटा क्रैक हो जाता है उसको हेक्साडेसिमल फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हो। तो हेक्साडाइजेस क्या करेगा, जो आउटपुट आता है हेक्साडेसिमल फॉर्म में आता है। ध्यान रखिएगा, आपने 4 तरह के नंबर सिस्टम सुने होंगे, डेसिमल होता है, ऑक्टल होता है, बाइनरी होता है, हेक्सा होता है। तो ये जो डेटा होता है मोस्टली सारा हेक्साडेसिमल में होता है। कहाँ होता है मैं अभी आपको प्रैक्टिकली थोड़ा सा और दिखाऊंगा। तो यहाँ से जो डेटा आया है ये पहले मैंने यहाँ कन्वर्ट किया, फिर इसको मैंने शोकेस करा। फिर मैंने यहाँ बताया कि कौन कितने बिट में जा रहा है, वो यहाँ आपको लेंथ भी शोकेस करे आपको। तो यहाँ पे आपको एनक्रिप्टेड डेटा भी शो करेगा, साथ की लेंथ भी शो करेगा, जिससे आपको बदल जाएगा जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा सिक्योर एनक्रिप्शन। ये ध्यान रखिए।
इस प्रोग्राम को अगर आप रन करना चाहते हो सिंपली आप यहीं से रन कर सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट विंडो पे हम गए, या आप डाउनलोड कर सकते हो गिटहब से। मैं भी आपको दिखाता हूँ कहाँ से करोगे आप इसको। देखिए यहाँ पे मेरी सारी फाइलें आ रही हैं, अलग अलग वर्जन है मेरे पास। ये जावा है, ये नोड जेएस है, अलग अलग वर्जन है हमारे पास, जहाँ पे हमने कुछ सैंपल्स बनाए आपको अलग अलग चीजों के लिए। ये सैंपल पाइथन का है जो भी आपको मैंने दिखाया। हमने कहा पाइथन, और पाइथन के अंदर हमने इसको सिंपली रन कर दिया। यहाँ से हमने कहा हैशिंग टेस्ट डॉट पाई। देखिए डेटा मांग रहा है आपसे, मान लीजिए मैंने अपना नाम लिख दिया डॉक्टर बीपी शर्मा। फिर आप चेक करिए, देखिए जो MP5 ने एनक्रिप्ट किया है वो ये एनक्रिप्ट किया है, वो 32 बिट का डेटा है। ऐसे बच्चे बने जो एनक्रिप्ट किया वो ये एनक्रिप्ट किया है, ये 40 बिट का डेटा है। इसी तरह से SHA नेक्स्ट हमने कौन सा लिया था उसमें जरा चेक करें एक मिनट। टाइप कर लीजिए यहीं पे, टाइप से आपको दिख जाएगा वैसे तो हमने कहा टाइप, हमने कहा हैशिंग टेस्ट डॉट पाई। गौर करिए देखिए SHA ये 256 से 500, ये देखिए इससे डेटा हो रहा है 64 बिट का। जो हमारा बिटकॉइन होता है और जो इथेरियम होता है, जो बिटकॉइन होता है वो ये वाले एल्गोरिथम यूज करता है SHA 256। इसी तरह की मिलती जुलती एल्गोरिथम है कैकाक, जो इथेरियम होता है वो कैकाक का यूज करता है, कैकाक 256 का इस्तेमाल करता है। तो जो भी डेटा एनक्रिप्टेड होता है वो इस तरह से स्टोर होता है। अगर इसी के एल्गोरिथम आप और ज्यादा ले जाओगे 512 तो ये 128 बिट का डेटा बनाएगा। अब सोचिए डेटा जो जितना ज्यादा एनक्रिप्टेड डेटा, हाईली एनक्रिप्टेड होगा, उतना ही उसको डिकोड करना, उसको समझना उतना ही मुश्किल होगा, और उतना ही सिस्टम आपका ज्यादा सिक्योर होगा। यही काम आप जो उससे कर रहे हैं वही काम हम जावा से कर सकते थे। हमने कहा जावा सी, अगर मैं मान लो रन करता हूँ जावा, और यहाँ हमने कहा एक मिनट चेक कर लेते हैं क्लास फाइल हमने किस नाम से बनाई है, जैसे हैशिंग टेस्ट, तो हमने कहा जावा हैशिंग टेस्ट। आप कुछ ना कुछ कोई ना कोई अगर जानता होगा दे कैन ऑल यूज ऑल दीस थिंग्स। सारे कोड में आपको दे दूंगा, आप स्टडी। यहाँ केवल मैंने 26 को सिफर निकाला है, तो उसको सिफर बोलते हैं, जो कन्वर्टेड डेटा होता है इसको सिफर बोलते हैं, टेक्निकल इसका नाम है सिफर। तो यहाँ से ये डेटा हमारा देखिए यहाँ पे आ चुका है। अगर इसी चीज को आप नोड जीएस में करना चाहते तो नोड जीएस में कर सकते थे, क्योंकि सारी टेक्नोलॉजी जो भी, अगर आप यहाँ से जाओगे तो इसको अगर मैं हैशिंग टेस्ट डॉट ये जीएस दिखाता हूँ, ये देखिए ये बहुत सिंपल सा कोड है इसके। अगर आप इसको नोड जीएस में लिखते हो तो मुश्किल से 2 लाइन का कोड है। इसके लिए बिल्ट इन लाइब्रेरी हमारी क्रिप्टो जीएस के नाम से, उसके को आप डाउनलोड कर सकते हैं लाइब्रेरी को, npm टूल से डाउनलोड करके इसको आप यहाँ से यूज कर सकते हो। और ये सिंपल हमने फंक्शन कॉल किया हुआ है, और डेटा को यहाँ पे हमने 1 2 3 को खाली कन्वर्ट किया हुआ है। तो अगर आप इसको यहाँ पे लॉग को रन करेंगे तो इसको मैं देता हूँ, नोड्स को रन करने की कमांड है नोड। हमने कहा नोड, हमने कहा हैशिंग टेस्ट डॉट जेएस। तो ये जेएस फाइल को अगर आप रन कर सकते हो तो देखिए डेटा आपका एनक्रिप्ट होके आ रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, अगर आप कोई भी टेक्नोलॉजी आप अडॉप्ट कर सकते हो। जैसे अगर मैं आप इनको दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे मैंने पाइथन का केस आपको दिखाया था, ये जावास्क्रिप्ट का कोड है जो अभी भी आपने देखा था। ये नोटपैड के अंदर आराम से खोल सकते हो आप लोग। तो ये देखिए नोटपैड के अंदर केवल 4 लाइन के कोड में, हाँ जावा में कोड थोड़ा सा लंबा होता है। इसी काम को अगर जावा में करते हो आप लोग तो आप देखेंगे तो जावा के अंदर थोड़ा सा बड़ा कोड है। ये अलग अलग तरीके के कोड्स हैं, ये हर लैंग्वेज इन सारी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। कि क्रिप्टोग्राफी ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिसके लगभग हर लैंग्वेज की जरूरत है, सिक्योरिटी हर लैंग्वेज में चाहिए होती है, हर जगह डेटा को हमें मैनेज करना होता है। तो उसके लिए खास तरह का हमारा पैकेज है जावा डॉट सिक्योरिटी, उसके अंदर क्लास होती है मैसेज डाइजेस्ट जो उस काम को करती है। ये सारे के सारे सिस्टम्स गिटहब पे मौजूद है। अगर आप इसको गिटहब पे जाओगे तो ये सारी चीजें वहां से आप देख सकते हो। तो मान लीजिए मैं गिटहब पे आपको लेके जाता हूँ। मैं कहा नहीं खाली आपका ये नहीं है कि बस आपकी ब्लॉकचेन क्या होती है, यू कैन सी द रिफ, यू कैन जस्ट फील इट। तो गिटहब पे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे अगर आप लिखोगे डॉक्टर बीपी शर्मा, तो जो भी मेरी लाइब्रेरीज हैं वो आपको यहाँ लगभग सारी मिल जाएंगी। ये मेरा नाम आ चुका है, देखिए यहाँ की लाइब्रेरीज होंगी। ये लाइब्रेरी शो नहीं कर रहा है, ये आ गई देखिए, सी प्रोग्राम्स, जावा, इथेरियम। ये लाइब्रेरी कहाँ चली गई, रिपॉजिटरीज 13 ये आ गई, गोलैंड प्लेसमेंट 2.0, सी प्रोग्राम, ब्लॉकचेन वगैरह। इसके अंदर जाएंगे देखिए ये सारे प्रोग्राम पड़े हुए हैं। यहाँ से जेएस की भी लाइब्रेरी है, जावा की भी लाइब्रेरी है। ये तीनों प्रोग्राम जो मैंने अभी आपको दिखाए यहाँ मौजूद है, आप यहाँ से इनको डाउनलोड भी कर सकते हो। तो ये क्रिप्टोग्राफी का हल्का सा एक आइडिया ले सकते हो कि कौन सी लैंग्वेज क्रिप्टोग्राफी को किस तरह से अपने यहाँ पे यूज करती है, और उनको हम किस तरह से अपने एक रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो में आप यूज करते हो। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा नहीं लग रहा है, ये बताओ पहले। क्रिप्टोग्राफी क्या, किसको कह रहे हैं हम, ये जो हमने टर्म यूज किया था लास्ट में, आप यूज करिए देखिए। क्रिप्टोग्राफी टोटल ये टेक्नोलॉजी क्रिप्टोग्राफी पे बेस्ड है। थोड़ा सा अगर इंटरेक्टिव हो जाए, कुछ लोग थोड़ा सा मुझे कुछ बताएं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हल्का फुल्का आइडिया लग रहा है टेक्नोलॉजी के बारे में, ब्लॉकचेन का हल्का फुल्का, कम से कम कुछ कुछ शब्द पकड़ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। क्योंकि ऐसे हम खाली बोलते रहे और आप सुनते रहे और सुन भी रहे नहीं, ये नहीं पता कि बस एक ऑनलाइन करके बच्चे चले गए।
तो उतना अच्छा सा नहीं लगता। कुछ फील, अगर कोई फीडबैक आ रही हो, तरुण जी कोई फीडबैक है? सर अभी तक तो बच्चों का कोई क्वेश्चन नहीं आया है चैट बॉक्स में, आई हैव चेक दैट। कमाल की अभी तक बात तो है, नहीं है। मतलब इतने आई होप डिस्कशन दे के बाद। दे आर गेटिंग द थिंग इन राइट मैनर। आपने जितना डिटेल में बता रहे हैं तो मुझे जी नहीं लगता शायद, क्योंकि इतना एलोबरेट करके आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वन बाय स्टेप एक तो आपकी चीज़ें प्लस आप चीज़ों को वो पूछ रहे हैं उससे पहले चलिए सब कोई, चीज़ें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चलिए सर कोशिश करते हैं यदि बच्चों कोई को थोड़ा डाउट सा। होगा तो सर चैट बॉक्स में मैंने लिख दिया है, दे विल नहीं आस्क। बट बाकी लोग इसमें क्यों ना कर, इसका वीडियो भी बिल्ड हो रहा है, तो अगर आप जिन लोग अभी नहीं भी इसको कर पा रहे हैं, बाद में इसका वीडियो आप जरूर देख सकते हैं। फेसबुक पेज पे भी मैम ने बताया था, हमारी मैम ने, तो आपको पब्लिश होगा यूट्यूब के हाँ ऊपर भी, तो बाद में भी आप इसको रेफर कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल हमारा सब्सक्राइब करके रखिए एमसी डिपार्टमेंट का, तो वहाँ आपके हर वीक कोई ना कोई वर्कशॉप सेमिनार चलती रहती है, तो उसके बारे में आपको बहुत कुछ आइडिया आपको और भी लग सकता है। चलिए, Student, I have already shared the link of YouTube channel. राइट सर। ओके ग्रेट, चलिए बहुत बढ़िया है। तो चलिए, तो ये हम अभी यहाँ तक पहुंच चुके थे, तो हमने एक आइडिया दिया था कि हम सिक्योरिटी किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं यहाँ पे, और सिक्योरिटी के बारे में। तो क्रिप्टो करेंसी मेरे ख्याल से एक वर्ड थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा आपको, जहां तक मैं समझता हूँ। तो ये जो टेक्नोलॉजी है सारी क्रिप्टो करेंसी पे बेस्ड है। बिटकॉइन तो आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, लेकिन इथीरियम को आप चाहो तो फील कर सकते हो। अगर आप इथीरियम को फील करना चाहते हो, तो आप सबसे पहले जैसे बैंकों में एक अकाउंट खोलते हो आप लोग यहाँ पे भी एक अकाउंट खोल सकते हो। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इस बारे में अगर ये चीज आइडिया देता हूँ, तो देखिए एक टूल आप यहाँ से यूज कर सकते हो। मैं अभी क्योंकि नोट्स उसमें नहीं है, मैं अलग से मैं आपको एक टूल के बारे में बात करता हूँ। इस टूल का नाम है मेटामास्क। जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट एक वर्ड सुना होगा लोगों से, कि इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट नाम की कोई चीज होती है। तो जैसे बैंकों में आप लोग अकाउंट खोलते हो, यहाँ पे भी आप अकाउंट खोल सकते हो। जो आपका इथीरियम नेटवर्क है वो आप इस चीज को इजीली अलाउ करता है। अगर मैं मान लीजिए इथीरियम ब्लॉकचेन के अंदर अपना एक अकाउंट खोलना चाहता हूँ, दैट आई कैन डू। उसके लिए टूल होता है मेटामास्क। बहुत सिंपल सा टूल है हमारा, इसका नाम है मेटामास्क। ये सब लोग, आप लोग हाथ के हाथ प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। मेरे साथ अगर प्रैक्टिकल कर देखोगे, शायद आप लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे, कि आपको फील कर पाओगे आप लोग कि हाँ भाई, ये जो रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशंस होती हैं। आपने जैसा ये भी सुना होगा, स्विस बैंक वगैरह में जो अकाउंट होते हैं, वहां पे किसी का नाम नहीं होता, कोई फोटो नहीं लगता, आपने सुना होगा। तो उसके अंदर सिक्योरिटी आखिर वो मेंटेन कैसे करते होंगे? उसके पीछे जो जितनी क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजीज होती हैं, उसके पीछे एक 12 वर्ड का कंसेप्ट होता है, जो 12 शब्द होते हैं, और उन्हीं के बेस पे सारे बैंकें काम करती हैं। स्विस बैंक वगैरह की कोई बैंक में आपको कोई आईडी पासवर्ड, कोई फोटो को देने की जरूरत नहीं होती। केवल 12 शब्द होते हैं। अगर 12 शब्द आपकी सीक्वेंस आपको पता है, तो अकाउंट आपका है, वरना आपका नहीं। ये कंसेप्ट क्या है? तो उसी कंसेप्ट जो स्विस बैंक का इस्तेमाल सालों से कर रही थी, उसी कंसेप्ट को इस्तेमाल किया इथीरियम ने मेटामास्क के अंदर, कि जब आप अपना अकाउंट खोलते हो, आप लोग कैसे खोलोगे आप लोग। इसके लिए बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, आप देखिए। साथ साथ प्रैक्टिकल अगर कर सकते हो आप लोग, तो प्रैक्टिकल मेरे साथ कर सकते हो। देखिए, क्रोम का अगर आप खोलेंगे, तो मैं अभी एक एप्लीकेशन मैंने यहाँ डाल रखी है, मैं पहले इसको हटा देता हूँ। एक सेकेंड रुकिए, जिससे कि हम आपको उसको प्रैक्टिकली दिखा सकें। एक सेकेंड रुकिए। रिमूव का ऑप्शन नहीं आ रहा क्या? डेवलपर मोड, एक सेकेंड रुकिए। आप लोग एक काम करिए, देखिए आप गूगल पे जाइए और वहां लिखिए मेटामास्क गूगल क्रोम एक्सटेंशन। मैं लिखिए मेटामास्क क्रोम एक्सटेंशन। इसको फील लाने की मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा। आप ये जो क्रिप्टोग्राफी है, अकाउंट है, इथेरियम है, ये चक्कर क्या है? क्या इस तरह को स्टार्ट कैसे करते हैं लोग इन सब चीजों के, ये एप्लीकेशंस को यूज कैसे करते हैं? तो उसके लिए एक छोटा सा एक फील लाने के लिए मैं आपको एक एप्लीकेशन दे रहा हूं, प्रैक्टिकल करके देखिए हाथ किया। यहां लिखिए गूगल के अंदर मेटामास्क क्रोम एक्सटेंशन। जब आप रन करोगे तो यहाँ देखिए इस तरह से लिखा आएगा, मेटामास्क एंड एक्सटेंशन गूगल क्रोम। या नीचे देखिए वेब स्टोर भी आ जाएगा, chrome.metamask क्रोम वेब स्टोर। आपकी नीचे metamask.io साइट भी आ रही है, आप कहीं से भी जा सकते हो। उसको पहले वाले पे क्लिक कर दीजिए, तो ये आपका एक्सटेंशन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, अगर मैं ऑलरेडी डला हुआ है, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। देखिए अब आपके यहाँ भी कुछ इस तरह का ऑप्शन आ रहा हुआ, देखिए ऐड टू क्रोम। यहां तक कुछ लोग पहुंच रहे हैं, जरा चैट बॉक्स में यस नो करके बता दीजिए, इससे हमें क्लियर हो सके। सच में कुछ लोग, 2-4 लोग ट्राई कर रहे हैं क्या? तरुण से जरा चेक करिए, कोई यस नो कर रहा है क्या? कोई ट्राई कर रहा है पहले? अंजलि सेंगर, यस सर, अंजलि सेंगर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग कर रहे होंगे तो शायद फील, आप इसको फील कर पाएंगे। चलिए बहुत बढ़िया।
तो यहाँ पे क्लिक करिए, देखिए ऐड टू क्रोम पे जाएंगे, जब आप लोग ऐड एक्सटेंशन करेंगे आप लोग, तो ये कुछ चेक करेगा 2-4 चीजें। नीचे देखिए कुछ डाउनलोड वगैरह कर रहा है यहाँ पे ये, तो इसकी एक फाइल डाउनलोड करता है जो उसकी एक्सटेंशन की फाइल होती है। ये देखिए कुछ सिंक वगैरह करेगा, वेलकम टू मेटामास्क का देखिए स्क्रीन आ जाएगी। आगे सब लोगों की यहाँ तक मेरे ख्याल से ज्यादा मुश्किल नहीं, छोटा सा टूल है, बहुत बहुत छोटा सा, मुझसे 200 150 200 KB का टूल है। जब यहां से क्लिक करेंगे आप गेट स्टार्टेड पे, तो ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ 2 ऑप्शन है, इंपोर्ट वॉलेट, अगर कोई वॉलेट आपने पहले से बना हुआ है आपका, उसको आप यहाँ से इंपोर्ट भी कर सकते हो, और नहीं है तो नया वॉलेट बनाएंगे यहाँ से। यहाँ से फिलहाल आप लोगों को वॉलेट नहीं बने होंगे जिन लोगों के, दे कैन स्टार्ट फ्रॉम क्रिएट वॉलेट। आप यहाँ से जाइए क्रिएट वॉलेट, तो ये कुछ ऑप्शन देगा आपको, हेल्प अस इंप्रूव मेटामास्क एंड ऑल, एग्री या नॉट एग्री, तो आपको पता ही एग्री करे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो एग्री करके आप आगे बढ़ जाइए। अब देखिए आपसे पासवर्ड पूछेगा, ये आपसे कोई आईडी नहीं पूछ रहा, गौर करिएगा आपकी, ये सिर्फ आपसे पासवर्ड पूछ रहा है। कोई भी पासवर्ड जो आप चाहो वो डाल सकते हो। फिलहाल मैं अपना पासवर्ड डाल रहा हूं, कुछ भी आप डाल सकते हो। फिलहाल मान ले मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया। क्या से यहां तक सब लोग आ गए होंगे, तो यहां से हम आगे गए, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूं क्योंकि दिखेगा नहीं अदरवाइज मुझे स्क्रीन। ये यहां से इसको चेक करिए, यहां से करिए क्रिएट। अब देखिए यहाँ पे सीक्रेट बैकअप फ्रेज, ये आपको सीक्रेट देता है 12 वर्ड्स का। क्योंकि मैं डमी अकाउंट बना रहा हूं इसलिए मैं आपको रिवील कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप इस पर क्लिक करेंगे अपने यहाँ पे, तो देखिए 12 वर्ड्स आ रहे होंगे कुछ। इन 12 वर्ड्स को आपको संभाल के रखना है, बस समझ लीजिए यही आपका जो भी आपका मेटामास्क का अकाउंट है उसका सिक्योरिटी मॉडल है। अब अपना कुछ भी भूल जाओ, पर ये आपके 12 शब्द आपको नहीं भूलने। ये जो पासवर्ड जिससे आप एंटर हुए हो वो, और ये जो 12 शब्द हैं, यही आपके अकाउंट को रिकवर करने में काम आते हैं। तो अपना ये जो पासवर्ड आपने डाला था और ये जो 12 वर्ड्स हैं, अब आप आगे जाओगे, जैसे नेक्स्ट करोगे इनको वेरीफाई करवाएगा कि आपने सीक्वेंस याद है आपको, ये नहीं। तो अगर आपने बैकअप नहीं लिया होगा, कहीं सेव करके नहीं रखा हो, तो आपको याद ही नहीं रहेंगे। पहला वर्ड क्या है मेरा, स्टम्बल एंटिक दिस, स्टम्बल मैंने क्लिक किया, स्टम्बल। दूसरा क्या वर्ड था मेरा, एंटिक, यहाँ किया मैंने एंटिक। तीसरा वर्ड है मेरा दिस। ये रैंडम वर्ड्स होते हैं, सबके अलग अलग आ रहे होंगे, सेम नहीं आ रहे होंगे। आपके वर्ड्स कुछ और होंगे, मेरे वर्ड्स कुछ और होंगे, सबके अलग अलग आ रहे होंगे। वेट, डिवाइड, इमर्ज, मैंने कहा वेट, डिवाइड, मर्ज, कहाँ गया इमर्ज है, मर्ज है, इमर्ज। ये हो गए हमारे मॉनिटर पिस्टल सनसेट, मॉनिटर पिस्टल सनसेट, and then comes afford slender 100, afford slender 100। देखिए कंफर्म किया हमने, कांग्रेचुलेशन हो गई, इसका मतलब हमारा अकाउंट अच्छे से मेंटेन है और डन। ये देखिए ये आपकी अकाउंट की स्वैपिंग भी कह रहा है कि आप किसी एक टोकन को दूसरी टोकन, ये जो आपके अलग अलग तरह के अमाउंट्स होते हैं इनको टोकन्स भी बोलते हैं। तो हमको स्टार्ट भी कर सकते हैं, फिलहाल कुछ नहीं करना, इसको क्रॉस कर दीजिए। देखिए अभी आपके पास 0 इथीरियम आ रहे होंगे यहाँ पे, क्योंकि अभी आपके पास कोई भी इसमें इथीरियम नहीं है अभी आपके पास। अगर ऊपर गौर करेंगे यहाँ देखिए कुछ लिखा हुआ आ रहा होगा, इथीरियम मेन नेट, ये मेन नेटवर्क है इथीरियम का। लेकिन अभी आपने, और एक इथीरियम भी अच्छा खासा है, महंगा है, ध्यान रखिए सस्ता नहीं है। अगर मैं 1 ETH की बात करूं इस वक्त, ये भी लाखों रुपए में है। ये देखिएगा एक ETH की कीमत इस वक्त कितनी चल रही है, जरा देखिए 1,30,825 रुपए। ठीक है, इथीरियम इस वक्त अगर आप परचेज करते हो मार्केट से, तो 1,30,000 रुपए का एक इथीरियम है, फ्री की चीज नहीं है। और आपको शायद याद हो 3 महीने पहले ये केवल 11-12 हजार रुपए का, 3-4 महीने पहले 11-12, 10 गुना बढ़ चुका है रेट इसका। अभी क्यों बढ़ चुका है, बस यही आपको समझना है। ये सब बहुत सारी चीजें हैं जो समझने की होती है कि आखिर ये, अगर मैं बात करूं 2015 में जो बिटकॉइन था वो 70,000 रुपए का था केवल, जो आज 37 लाख रुपए का है। मैंने एक बिटकॉइन इस जमाने में खरीदा था और उसको 1,40,000 रुपए का जब अगले महीने हुआ मैंने बेच दिया, डबल का मुनाफा लेके, सोच के कि अब तो बहुत हो गया, जितना बढ़ना था बढ़ गया। लेकिन आज वो 37 लाख रुपए का है। अगर वो बिटकॉइन हमने संभाल के रखा होता है और आज हम बेचते तो 37 लाख रुपए का होता। सोच सकते हो आप लोग, 2015 में केवल 70,000 रुपए का था बिटकॉइन। तो अलग अलग चीजें, अगर इसमें देखिए नीचे कुछ और आया नाम, रोबस्टन, कोवन, रिंकीबाई, गोरेला, ये लोकल होस्ट एंड ऑल, अलग अलग आ रहे हैं। ये हमारे टेस्ट नेटवर्क्स हैं। जब हम कोई भी रियल एप्लीकेशन ब्लॉकचेन की बनाते हैं, जो यहाँ डायरेक्ट टेस्ट करने के लिए बहुत मोटा पैसा चाहिए,
लेकिन अगर हम इन नेटवर्क्स का यूज करेंगे तो हमें पैसे की देने की कोई जरूरत नहीं है। हम चाहें तो इसमें आपका जो फ्री कुछ करेंसीज होती है उनको हम यूज कर सकते हैं, या हमारे पास थर्ड पार्टी अगर अकाउंट अगर जाकर देखोगे इस अकाउंट को, इस अकाउंट का देखिए एड्रेस, देखिए ऊपर अकाउंट एड्रेस आ रहा होगा आपके अकाउंट पे, जरा क्लिक करिएगा इस पे, ये कॉपीड लिखा हुआ आ रहा होगा, नोटपैड में जरा पेस्ट करना है इसको और करना, जो आपका एड्रेस है कैसे आ रहा है, आपका कोई नाम नहीं पूछा इसने, कोई फोटोग्राफ नहीं पूछा, कुछ नहीं पूछा। अब यही वो नंबर है जिससे आप कोई भी लेन देन कर सकते हो, यही आपका आईडी है। बस ये आपका आईडी मिस हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आपको याद रहना चाहिए। इस आईडी से इस एड्रेस को कैसे बनाया जाना है, ये सब प्रोग्राफी कोर्सेज के अंदर हम पढ़ाते हैं कि ये आपके सिर्फ ये याद रहने चाहिए, ये तो बन जाता है, इसकी कोई टेंशन नहीं है। टेंशन इस बात की है, ये भूल जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 12 शब्द नहीं भूलने हैं बस आपको। इस तरह से अगर 20 अकाउंट भी खोलोगे तो 20 का एड्रेस हम बना के दे देंगे आपको, ऑटोमेटिक इन्हीं से एड्रेस बन जाते हैं। वो कैसे बनते हैं वो सब जो ब्लॉकचेन का हम कोर्स कराते हैं उसके अंदर आपको सारी चीजें बताते हैं, सब कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। ये पूरा सब कितने भी अकाउंट बना सकते हो आप इसमें, और भी अकाउंट बना सकते, खाली ये नहीं, आप और भी अकाउंट्स के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर जाओगे देखिए अकाउंट आ रहा है, क्रिएट अकाउंट है। मान लो आपको अलग अलग और अकाउंट बनाना है, आप और अकाउंट बना लीजिए। मान लीजिए आपको अलग अलग तरह के अकाउंट बनाना है, कुछ सपोज आपको कुछ पेमेंट्स कहीं करने हैं, कुछ रिसीव करने हैं, या पेमेंट्स का मैं अलग ही कोई अकाउंट क्रिएट करना चाहता हूँ, मैंने एक पेमेंट्स का एक और अकाउंट बना दिया। देखिए ये दूसरा अकाउंट हो गया मेरा, अब ये दूसरा एड्रेस जनरेट हो गया मेरा। गौर करिएगा, ये अलग एड्रेस होगा, पहले वाला एड्रेस अलग होगा। अलग अलग तरीके की ब्लॉकचेन्स, अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। इवन अगर हमें लोकल टेस्टिंग करनी है तो लोकल टेस्टिंग के लिए इतने सारे पैसे कहां से लाओगे? तो इसके लिए हमारे पास ये आइडिया ले सकते हो आप, जिसके लिए हमारे पास कुछ और टूल्स हैं जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो। जिसमें खास टूल है हमारा गणेशा, ये सॉफ्टवेयर आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। सॉफ्टवेयर का नाम होता है गणेशा, ये हमारे गणेश जी जैसा ही है, पर स्पेलिंग अलग होती है इसकी, ये होता है गणेशा, स्पेलिंग अलग है इसके, ध्यान रखिए। ये ट्रिपल शूट करके पूरा एक सॉफ्टवेयर आता है, जैसे एमएस ऑफिस एक सूट होता है ऐसे ही, जिसके अंदर वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट आते हैं, उसी तरह से ट्रिपल शूट नाम का पूरा सॉफ्टवेयर किट है जो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए बनाई गई है, जिसमें एक खास टूल है गणेशा। ये स्पेलिंग अलग होती है, जो गणेश आप लोग वर्ड यूज करते हैं थोड़ी सी अलग स्पेलिंग है। इसको आप नेट से डाउनलोड करेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे अपनी लोकल मशीन पे। तो ये आप यहाँ से जाएंगे, देखिए गणेशा आ गया, वन क्लिक ब्लॉकचेन है आपकी लोकल ब्लॉकचेन। इसको डाउनलोड विंडो लिनक्स सबके लिए होती है, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। डाउनलोड करके जब लोकल पे इंस्टॉल करेंगे आप, तो ये कुछ इस तरीके का आ जाएगा। देखिए हमने कहा गणेशा, इस रियल वर्ल्ड आइटम है, कोई थ्योरी नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए इतनी सारी जॉब है, इतनी रिक्वायरमेंट है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा तो शायद कुछ आप समझ पाएंगे। ये क्या करेगा, देखिए ये मुझे 10 अकाउंट बना के दे देगा ट्रायल के लिए। देखिए हर एक के अंदर 100 ईथर पड़े हुए हैं, जरा गौर करिए। एक ईथर की अभी वैल्यू कितनी दिखाई थी, मैंने आपको याद करूं, 1,30,000 रुपए। यहां मुझे इसने 10 अकाउंट फ्री बना के दे दिए ट्रायल के लिए, जिसको मैं अपनी प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल कर सकता हूं। जिसमें कि हम अब सोचिए एक अकाउंट में मेरे पास 100 ईथर है और 10 अकाउंट है मेरे पास, यानी 1000 ईथर हो गए। इसकी मल्टीप्लाई कर लो कितनी वैल्यू होगी, पर ये ट्रायल के लिए है, जिससे कि कोई भी रियल एप्लीकेशन अगर आप टेस्ट करना चाहते हो तो आप इस सर्वर के ऊपर टेस्ट कर सकते हो, और जहां से हम इसको काम कर सकते हैं, यहाँ उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं सब चीज। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हैं ट्रांजेक्शन, क्योंकि सबसे पहले ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन लेन देन होता है उसको ट्रांजेक्शन बोलते हैं। उन ट्रांजेक्शन को एक जगह क्लब करते हैं उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, इसलिए इसका नाम है ब्लॉकचेन। ब्लॉक्स को जब क्लब कर देते हैं उसका नाम होता है ब्लॉकचेन, चेन ऑफ ब्लॉक्स। जैसे अगर मैं इथेरियम की अगर मैं बात कर रहा हूँ, इसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन देखनी है अगर आपको, तो इसका रियल वर्ल्ड में एक वेबसाइट है, इसका नाम है etherscan.io। जितने भी इथेरियम के रियल वर्ल्ड ट्रांजेक्शन हो रहे हैं आप यहाँ से देख सकते हो, ये देख सकते हो। देखिए आप, ये ट्रांजेक्शन अभी अभी हुआ है, देखिए 52 सेकंड पहले। साइट का नाम है etherscan.io। ये अभी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन हुआ है, इसमें देखिए कितना अमाउंट यूज हुआ है, 0.00093 इथेरियम। कितना ट्रांजेक्शन चल रहा है, जैसे इसमें 0.3 इथेरियम, ये ट्रांजेक्शन थोड़ी देर पहले हुआ है, देखिए लगभग 52 सेकंड पहले, या अभी अभी लेटेस्ट ट्रांजेक्शन हैं। ये किसने किया, किसको किया, पूरी डिटेल इसके अंदर रहती है, पूरी टाइम स्टैम्प रहती है, सब कितने बजे हुआ था, एक एक चीज। यहाँ से कोई भी चीज आप ट्रैक कर सकते हो, हर चीज का यहाँ पे ट्रैक होता है, किसने दिया किसको। ये पब्लिक ब्लॉकचेन है, क्योंकि पब्लिक का मतलब है एनीबडी कैन यूज इट, एनीबडी कैन ट्रेस इट। अब यहाँ देखिए कुछ एक वर्ड लिखा हुआ माइनर माइनर माइनर। अब ये जो ट्रांजेक्शन हैं जो हुए होंगे, ये ब्लॉक में ऐड हुए होंगे, तो ये जिस भी कंपनी ने किए होंगे या जिस भी पर्सन ने किए होंगे उसको कहते हैं माइनर। क्योंकि ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं ब्लॉक में अपने आप ऐड नहीं होते, उसके पीछे एक प्रोसेस काम करती है, उस प्रोसेस को नॉर्मली हम बोलते हैं कंसेंसस।
इसके पीछे कंसेंसस नॉर्मली अगर आपने सुना हो एक टर्मिनोलॉजी कहते हैं प्रूफ ऑफ वर्क। जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो बिल्ड हुई थी उसके पीछे एक बहुत छोटी सी रिसर्च है जिसके पीछे काम कर रही है, जिसके पीछे एक टेक्नोलॉजी काम कर रही है। तो टेक्नोलॉजी बोलते हैं POW, प्रूफ ऑफ वर्क कंसेप्ट। अब प्रूफ ऑफ वर्क क्या है टेक्नोलॉजी? ये एक पजल बेस्ड मॉडल है। तो 2009 में एक पर्सन थे, वो रियल थे या झूठ थे कुछ नहीं पता, क्योंकि उनको सूडोनेम बोलते हैं, सताशी नाकामोटो। उन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया था। उन्होंने एक छोटी सी रिसर्च करी थी कि हम डेटा को इस तरह से रख सकते हैं कि जो पूरी मशीनें हैं सारी केवल वही काम करेंगी, सॉफ्टवेयर काम करेंगे, विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन हम डेटा को मैनेज कर सकते हैं और डेटा को सिक्योरली मैनेज किया जा सकता है। उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया था, उन्होंने एक एल्गोरिथम को आइडेंटिफाई किया था। उस एल्गोरिथम का नाम उन्होंने दिया था POW। वो क्या है? बहुत छोटा सा कंसेप्ट है। देखिए, मैं अगर आप उसमें प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं, अगर आप छोटा सा एक बहुत सिंपल सी अगर मैं बात करूं, पजल सोल्विंग टेक्निक उन्होंने आइडेंटिफाई की थी और उसी को आधार बना के पूरा का पूरा ब्लॉकचेन बना। मैं एक छोटा सा एक टेस्ट केस अगर आपको दिखाता हूं कि ब्लॉकचेन के आधार क्या है, जो आधार है इन सब चीजों को, उसके पीछे एक चीज काम करती है, उसको कहते हैं कंसेंसस। एक छोटा सा मॉडल मैं आपको दिखाता हूं। देखिए, एक छोटा सा फंक्शन, ये पाइथन में मैंने बनाया है, ये थोड़ा स्क्रीन में बड़ी कर देता हूं जिससे आपको दिख सके। देखिए, एक छोटा सा फंक्शन है, इसका नाम है प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर यहाँ एक एल्गोरिथम बनाई गई थी। एल्गोरिथम क्या कहती है कि इसके अंदर कोई दो नंबर लेते हैं, हम दो नंबर का स्क्वायर निकालते हैं, उनके बीच का डिफरेंस निकाल लें और उसको हैश कोड में कन्वर्ट करें, तो कभी ना कभी जो स्टार्टिंग के नंबर होते हैं वो 0000 आते हैं। अब उन्होंने इसको क्या करा, रिसर्च करते हुए उन्होंने इस चीज को आइडेंटिफाई करा कि दो नंबर्स के डिफरेंस को जब कभी आप किसी नंबर को कन्वर्ट करते हो हेक्साडेसिमल फॉर्म में, SHA फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग की जो बिट होती है वो 000 आते हैं नंबर। ये हल्की सी जो रिसर्च थी वही ब्लॉकचेन का आधार बनी। अब जरा गौर करिएगा। देखिए, मैं आपको एक केस दिखाता हूं। जैसे मैंने स्टार्टिंग नंबर लिया 5 और हमने कहा भाई तुम एक काम करो, मेरे नंबर को लो 5 को, और 1 से तुम स्टार्ट करते हुए मेरे नंबर का अपना नंबर लो, अपने नंबर का स्क्वायर निकालो और मेरे नंबर का स्क्वायर निकालो, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो और उसको हैश कोड में कन्वर्ट करो और चेक करो। अगर स्टार्टिंग की 4 डिजिट आपकी 0 आ जाती है तो पजल आपकी सोल्व हो गई, वरना पजल सोल्व नहीं हुई। ये पजल की जो है इसका नाम था प्रूफ ऑफ वर्क, जो हमारी बैकबोन बनी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की। ये पजल है बेहतर। अब इसमें क्या है, जो भी बंदा इस पजल को सोल्व कर देता है उसको कहते हैं माइनर, और वो रिवार्ड का हकदार होता है। जो भी पहले आपकी पजल को सोल्व कर देता है उसी को क्रिप्टो करेंसी मिलती है, उसी को बिटकॉइंस मिलते हैं, उसी को इथेरियम मिलते हैं। ये कंसेप्ट है जो सबसे पहले बिल्ड हुआ था 2009 में। अगर आप देखना चाहते हो कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता, तो एक चीज देखो, मैं आपको एक प्रैक्टिकल दिखाता हूं जिससे आप इस चीज को समझ सकें। देखिए, प्रोग्राम में रन कर रहा हूं, जरा देखिएगा। देखिए, प्रोग्राम आपका रन होता जा रहा है, रन होता जा रहा है, रन होता जा रहा है। डेटा दो नंबर के बीच का डिफरेंस इसने निकाला होगा। देखिए, ये निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है, निकालता जा रहा है। एक सिनेरियो ऐसा आएगा कहीं ना कहीं आपको जहां स्टार्टिंग में डेटा देखिए हैश कोड 0 बनेगा। जरा गौर करिए, अभी पूरा नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो गया? IO डेटा रेट पब्लिश नोटबुक, पूरा नहीं हुआ अभी तक, ये पूरी रिपोर्ट नहीं आई है। ये थोड़ा छोटा नंबर कर देते हैं, एक काम करते हैं, नंबर क्योंकि थोड़ा टाइम ज्यादा लेता है, एक काम करते हैं इसको नंबर छोटा कर देते हैं इसको। चलिए, ये देखिए स्टार्टिंग की 4 0 आ रही है और ये कहां पे जाके आई है 533, लगभग 533 बार लूप चली है ये, तब जाके पजल को सोल्व किया गया। तो ये पजल सोल्विंग जो टेक्नोलॉजी है इसी का नाम था प्रूफ ऑफ वर्क। ये एक एल्गोरिथम है जो सबसे पहले बनाई गई थी 2009 में रिसर्च के दौरान, और इसी कंसेप्ट को उन्होंने लेके चले बेस को कि भाई इसमें जो भी पर्सन होगा, ये जो डेटा हमारे ट्रांजेक्शन होंगे इनको ब्लॉक में ऐड कौन करेगा, नेटवर्क पे ऐड कौन करेगा, कौन हमारे लिए मेहनत करेगा। हमने कहा भाई जो भी पर्सन इस पूरी पजल को पहले सोल्व कर देगा, इस तरह की पजल, जैसे हमने तो 4 0 बहुत छोटी ली है, उसके अंदर 18 32 0 तक होती है, इसमें प्रोसेस करने में टाइम लगता है। तो किसी जो भी डेटा को पहले प्रोसेस कर लेता है वही एक पजल सोल्वर होता है, उसको माइनर बोलते हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है यही ब्लॉकचेन का आधार है। इसी के बेस पे आप ब्लॉकचेन्स बना सकते हो, पूरे पूरे ब्लॉक्स बना सकते हो, आप उसको टेस्ट कर सकते हो, नए नए नोड बना सकते हो। तो इसके लिए मैंने एक सैंपल भी बनाया हुआ है, अगर आप एक सैंपल चाहेंगे मैं आपको सैंपल भी दे दूंगा जिससे आप इस सैंपल को देख सकते हैं कि किस तरह से माइन होते हैं, कैसे रिकॉर्ड बनते हैं। जैसे अगर आपने अभी देखा था बिटकॉइन इसका इथेरियम वाला इथेरियम का, तो आप गौर करें हर रिकॉर्ड का एक
नंबर है, हर ब्लॉक का एक यूनिक कोड है। अगर आप गौर करिएगा, देखिए जितने भी देखिए ब्लॉक का एक नंबर आ रहा है। तो इस वक्त जो हमारा रिकॉर्ड है, हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने आ रहे हैं, चेक करिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी 12 करोड़ रिकॉर्ड केवल इसके अंदर है, अगर आप इसमें टोटल देखें। इसी तरह से जो अगर हम अपना कोई रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं, हम भी बना सकते हैं। अगर हम कोई अपनी खुद की ब्लॉकचेन बिल्ड करना चाहते हैं, हम भी बिल्ड कर सकते हैं, और इसको चाहे तो देख भी सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने इसको बनाया, यहाँ कुछ फंक्शंस बना रखे हैं मैंने ये ट्रायल के लिए। पाइथन की नॉर्मल कोडिंग है, अगर किसी ने पाइथन कर रखा है थोड़ा बहुत, सो दे कैन डू इट। अगर नहीं कर रखा कोई बात नहीं, दे कैन अंडरस्टैंड इट। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हमने कहा माइन ब्लॉक, क्या फंक्शन है हमारा, नाम, फंक्शन का नाम चेक कर लेते हैं एक बार। फंक्शन का नाम हमने दिया है, एक सेकेंड रुकिए, फंक्शन का नाम है माइन ब्लॉक। यहाँ गए, हमने कहा माइन ब्लॉक, तो देखिए एक ब्लॉक आ गया। सबसे जो पहला ब्लॉक होता है उसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। ये ध्यान रखिए, किसी भी नेटवर्क का सबसे हमें पता चल जाता है कि ये चीज कब पैदा हुई थी। जैसे जैसे आप माइन करते चले जाओगे तो नए नए नोड जुड़ते चले जाएंगे। अगर आप यहां से जाएंगे, अगर पूरा चेन देखना चाहते हैं तो पूरे चेन देख सकते हैं। अगर आप यहां से निकालते हैं ना गेट चेन, जैसे वो दिखा रहा है अभी एक्सप्लोरर, देखिए यहाँ पे हमने 4 रिकॉर्ड बनाए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे टाइम स्टैम्प होती है कि कोई रिकॉर्ड कितने बजे बना। ये रिकॉर्ड आपस में इंटरलिंक होते हैं। इंटरलिंक होने के लिए यहाँ पे देखिए हमारा जो भी हमारे रिकॉर्ड होते हैं आपस में इंटरलिंक किए जाते हैं। उसके पीछे आप देख रहे हैं क्रिप्टोग्राफी यूज हो रही है। तो एक जो भी ये रिकॉर्ड रहा होगा, इसका भी एक हैश कोड रहा होगा। ये हैश कोड अगले रिकॉर्ड को लिंक कर देता है आपस में। ये रिकॉर्ड को लिंक करने का तरीका होता है। प्रीवियस हैश क्या है हमारे पास, उस तरह से हम रिकॉर्ड को जोड़ते चले जाते हैं। तो ये आपस में रिकॉर्ड इस तरह से जोड़ते चले जाते हैं। और ये पूरा का पूरा, इसमें टोटल 4 रिकॉर्ड है हमारे पास। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी नेटवर्क कैसे काम कर रहा है। हम चाहें तो खुद की अपनी ब्लॉकचेन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई ज्यादा बड़ी मुश्किल चीज। नोड जेएस से भी बना सकते हो आप इससे, आप जावा से भी बना सकते हो, आप इसे पाइथन से भी बना सकते हो। बहुत सारी चीजें जो आप यहाँ से बिल्ड कर सकते हो। तो इसके लिए अगर अलग अलग तरीके टूल्स हैं, जितने ज्यादा टूल्स अगर हमें आपको आते होंगे। अच्छा, दूसरी बात, मैंने आपसे एक चीज और भी बात करी थी, आपको याद होगा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोई नई चीज नहीं होती ध्यान की। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक तरह की एप्लीकेशन ही होती है नॉर्मली, जो आप बना सकते हो और उनको यूज कर सकते हो। अलग तरह की लैंग्वेजेस होती है, जैसे सॉलिडिटी एक लैंग्वेज है, इसके लिए कंपाइलर होता है रिमिक्स के नाम से। अगर आप चाहते हो, remix.solidity की वेबसाइट है, solidity.org की। अगर आप वहां जाते हो, आप ऑनलाइन कंपाइलर ले सकते हो, किसी चीज की डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। ये सब ऑनलाइन अवेलेबल है टूल्स, आप इनको ऑनलाइन भी आप एक्सेस कर सकते हो और ऑनलाइन ही कोई काम कर सकते हो। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अगर हम कोई फील लेना चाहते हैं, एक सेकेंड रुको, गूगल पे जाते हैं पहले, यहाँ लिखो रिमिक्स IDE। ये आ गया remix.ethereum.org। जरा गौर करिए, ये देखिए यहाँ पे सॉलिडिटी SOL फाइल का एक्सटेंशन रहेगा, सो SOL। जरा चेक करिए, ये ऑनलाइन टूल है, इसमें लोकल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए अगर आप चाहते हो तो यहाँ पे एक सैंपल मैं आपको शेयर कर देता हूँ और आप इसको टेस्ट कर सकते हो। देखिए कोई फाइल, अगर एक सैंपल, एक मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नॉर्मल प्रोग्राम ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, कोई बड़ी चीज नहीं होती। सर नॉर्मल सी, जावा, पाइथन में हम कोडिंग करते हैं, इट्स वेरी सेम थिंग। अगर एक सैंपल से, जैसे फैक्टोरियल का प्रोग्राम मेरे ख्याल से सब लोगों ने, अगर जिन लोगों ने कभी छोटी मोटी कोडिंग भी कभी कभी करी होगी, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम जरूर सबने बनाया होगा। तो मान लीजिए उस प्रोग्राम का एक डेमो मैं आपको दिखाता हूँ, जो एक सैंपल डेमो मैंने बनाया आप लोगों के लिए। ये देखिए, मैं इसको वहीं पे ले चलता हूँ, मैं वहीं पे दिखाता हूँ। इसको कॉपी किया मैंने यहाँ से और इसको हम ले चलते हैं। यहाँ देखिए, ये आपका आ गया remix.org. ये यहीं पे आप देखिए, न्यू पे जाएंगे, यहीं पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम पूछेगा, मान लो फाइल का नाम है मेरा democontract.sol। यहाँ मैंने कोड यहाँ पेस्ट कर दिया, जरा गौर करिए, देखिए ऊपर एक कमांड आ रही है, इसका नाम है प्रेग्मा। प्रेग्मा कमांड बताती है कि आप सॉलिडिटी का कौन सा वर्जन, आपने सुना होगा हर सॉफ्टवेयर का, हर लैंग्वेज का एक वर्जन होता है। जैसे सी लैंग्वेज है, सुनी होगी किसी ने, जावा सुनी होगी, हर एक के वर्जन है। जावा का जैसे 15 16 वर्जन लेटेस्ट चल रहा है, ऐसे सॉलिडिटी के भी वर्जन होते हैं। तो ये हमने बताया कि हम पॉइंट, अभी ये इसका 1.0 वर्जन भी नहीं है, अभी इसको जो हाईएस्ट चल रहा है 0.7 0.8 अभी वर्जन चल रहे हैं। अगर हम इसको देखते हैं तो हमने इसको बताया कि हम 7 to 8 के बीच में कोई वर्जन यूज करेंगे। तो ये जो कमांड यहाँ पे लिखी गई है, तो समझ जाएगा ये लगभग इसी वर्जन के आसपास रही हूँ। जरा ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे नॉर्मली किसी ने अगर जावा वगैरह पढ़ा होगा कभी, तो वहां पे एक वर्ड पढ़ा होगा क्लास। जैसे क्लास बनाते हो आप लोग, वैसे को यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, वही कीवर्ड है सेम, क्लास की जगह यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ इसका नाम, जैसे वहां जावा में क्लास का नाम किसी ने बनाया हो कभी, पाइथन में या जावा में
या C++ में बनाया होगा किसी ने, सो वेरी सेम थिंग। तो यह हमने कॉन्टेक्ट बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो जिन लोगों ने सी जावा कुछ पढ़ रखा होगा, उसमें डेटा टाइप्स पढ़े होंगे, अनसाइंड, इंट और समथिंग। इसी तरह के यहाँ भी डेटा टाइप्स हैं। तो यहाँ हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया अनसाइंड UID25, इसका नाम है नंबर। हमने कहा पीछे से कोई नंबर अगर हमें भेजेगा तो उसके लिए हमने फंक्शन बना दिया कि जावास्क्रिप्ट जैसे सिंटैक्स है, नॉट जावास्क्रिप्ट या नोड.js का भी पढ़ा हो, थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो, सेम थिंग। तो फंक्शन बनाया, फंक्शन का एक नाम दे दिया, पीछे से कोई डेटा बनाया, ये इसका स्कोप दे दिया हमने पब्लिक, और हमने कहा पीछे से जो भी डेटा आएगा वो नंबर नाम के हमारे वेरिएबल में स्टोर हो जाना चाहिए। दूसरा फंक्शन है, हमने कहा गेट नेम, नाम अगर कोई गेट करना चाहता है इसको तो गेट कर सकता है। तो यह हमने बता दिया कि नंबर में भाई डेटा जो भी रखा है वो रिटर्न कर देना। यहाँ हमने फैक्टोरियल बनाया कि कोई बंदा इसका फैक्टोरियल निकाल दो, फैक्टोरियल कैलकुलेट करके इसको रिटर्न कर देना। जरा गौर करिए आप लोग, देखिए बहुत सिंपल सी प्रोग्रामिंग है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आप डायरेक्टली यहाँ से टेस्ट कर सकते हो। ये प्रोग्राम देखिए हमने टेस्ट के लिए यहाँ पे लिखा। अब इसको कंपाइल करना चाहते हैं, देखिए नीचे कुछ यहाँ मेनू आ रहा है लेफ्ट साइड में, इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये देखिए कंपाइल का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे इसको कंपाइल करिए, आपके हाथ क्या देखिए कंपाइल भी हो गया। कंपाइल होने के बाद अगर आप जाओगे तो उसको रन करना है तो नीचे रन कर सकते हैं, नीचे रन करने को बोलते हैं डिप्लॉय करना है। यहाँ पे जब आप इसको डिप्लॉय करेंगे, नीचे देखिए इसी के नीचे बटन आएगा डिप्लॉय। डिप्लॉय करेंगे आप तो देखिए यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बन चुका होगा, जैसे जावा में ऑब्जेक्ट सुने होंगे आप लोगों ने, सेम थिंग। अब ऐड नंबर फंक्शन देखो, सारे फंक्शन देखो यहाँ आ गए। मैं यहाँ से इसको कॉल करना चाहता हूँ, मैंने कहा ऐड नम, तो देखिए नंबर ऐड हो चुका होगा, ये फंक्शन कॉल हुआ होगा। गेट नंबर ने कॉल किया, देखिए नंबर वापस आ गया। फैक्टोरियल पे मैंने क्लिक किया, देखिए अब इन बिटवीन ये कुछ ट्रांजेक्शन हुए होंगे, ये ट्रांजेक्शन जो होंगे रिकॉर्ड कहाँ होंगे, इनको कैसे देखोगे, ये यहाँ से नहीं देख पाओगे आप। इसको देखना है तो जो भी मैंने टूल बताया था आप इससे इसको लिंक कर सकते हो। या आप गौर करिए, ट्रांजेक्शन यहाँ हो रहे हैं, यहाँ दिख नहीं रहे आप। यहाँ पे देखिए सर्वर है, देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है आरपीसी सर्वर। आरपी सर्वर का एक एड्रेस आ रहा है 127.0.1, पोर्ट नंबर आ रहा है 7545। इसको कॉपी कर लीजिए, ये मैंने कॉपी किया और रिमिक्स के साथ इसको हम अटैच करने जा रहे हैं। तो देखिए जहां रिमिक्स का एनवायरमेंट आ रहा है ऊपर, वहां लिखा है बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट वर्चुअल मशीन VM। इसके सबसे नीचे आ रहा होगा आपका वेब3 प्रोवाइडर, यहाँ क्लिक करेंगे तो स्क्रीन आ जाएगी ये, और यहाँ पे वो जो एड्रेस वहां से कॉपी करके लाए हो यहाँ डाल दो, ओके करो। ये आपका जो कनेक्ट हो गया, अब ये कनेक्ट हो गया देखिए इस वाले के साथ, ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। मतलब मैं वहां जो भी एक्टिविटी रन करूंगा ये एक तरह की लोकल ब्लॉकचेन की तरह मेरे लिए बिहेव करेगा, जो कुछ भी हो रहा होगा ब्लॉकचेन के अंदर ये मुझे दिखाएगा। अब मैं यहां से गया और मैंने इसको डिप्लॉय किया, डिप्लॉय करते ही एक ऑब्जेक्ट बिल्ड हुआ होगा मेरे लिए, और ये इसका जो एड्रेस है वो यहाँ आ गया होगा, देखिए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्रिएशन हुआ, उसका एक एड्रेस जनरेट हो चुका है, हैश कोड जनरेट हो चुका है ट्रांजेक्शन का, किस एड्रेस से किस एड्रेस पे क्या सब कुछ जानकारियां हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी अपना यूनिक एड्रेस होता है। अब यहां से अगर मैं कोई भी ट्रांजेक्शन अब करूंगा वो सारा यहाँ के रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे पास। तो अगर मैं मान लीजिए यहाँ गया और मैंने इसको फंक्शन कॉल किया कोई, हमने कहा ऐड नम, मैंने डेटा पास किया, एक ट्रांजेक्शन हो गया, देखिए मैंने डेटा फैच किया, दूसरा ट्रांजेक्शन हो गया, ये तीसरा ट्रांजेक्शन हो गया। ये सारे ट्रांजेक्शन देखिए यहाँ रिकॉर्ड हुए होंगे, देखिए ये आ गया। तो जो गेट होता है वो जनरली रिकॉर्ड नहीं होते, जो ऐड है वो रिकॉर्ड होते हैं। तो ये देखिए ट्रांजेक्शन यहाँ आ गए, इससे डेटा ब्लॉक में ऐड हुआ होगा, देखिए ये मेरे ब्लॉक बन गए। तो देखिए टाइम स्टैम्प भी अभी हाथ की आ रही होगी, अभी अभी बने हैं ब्लॉक्स 12-13, 13-28, 12-28, ये देखिए अभी अभी सारी चीजें बन रही हैं यहाँ पे। तो कौन सी चीज कितने बजे बनी, कितने बजे नहीं बनी, क्या बने, ये सब आप यहाँ से, ये ब्लॉक जैसे जैसे हमने इसको स्टार्ट किया था तभी ब्लॉक इनिशियल ब्लॉक बन गया था। तो ये जो हमारे पास है जेनेसिस ब्लॉक होता है, जो पहला ब्लॉक होता है वो जेनेसिस ब्लॉक होता है। बाकी ये ब्लॉक देखिए हमने जो भी ट्रांजेक्शन करते जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होते चले जा रहे हैं। अब मैं मान लीजिए एक और नया डेटा डालता हूँ सपोज के अंदर, हमने कहा एडनब मैं 5 की जगह मान लो 7 पे ऑपरेट करना चाहता हूँ, तो देखिए फिर से एक ट्रांजेक्शन हो गया, फिर से ट्रांजेक्शन हो गया, तो देखिए फिर से रिकॉर्ड हुआ होगा, देखिए तो ये कॉन्टेक्ट की कॉल जा रही, ये सारा का सारा डेटा हमारा रिकॉर्ड होता रहता है और हम इनको चेक कर सकते हैं कि रियल वर्ल्ड में डेटा किस तरह से। और ये डेटा अभी तो हमारा लोकल पे है, अगर ये डेटा रियल ब्लॉक चेन होगी तो ये डेटा का भी लॉस नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ से ट्रेस कर सकते हो, एक एक चीज ट्रांजेक्शन के बारे में एक एक डिटेल जान सकते हो, कब हुआ था, क्या नहीं हुआ था, कैसे, एक एक चीज की जानकारी यहाँ पर रहती है, कितने इथेरियम खर्च हुए थे, कितना क्या, सब कुछ रहता है इसके अंदर। तो आप लोकल पे भी पूरी फुल टेस्ट, तो ये आप समझ सकते हो जो कोडिंग है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं इस कोडिंग को। लेकिन कोई नई बात नहीं है, जैसे सी जावा पाइथन में नॉर्मल कोडिंग करते हो आप लोग, ये नॉर्मल कोडिंग ही होती है, बस का नाम अलग है। अगर हम इथेरियम फ्रेमवर्क पे यूज करेंगे तो उसको हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, और इसी को अगर हाइपरलेजर पे बोलेंगे इसको चेन कोड बोलेंगे। चेन कोड के अंदर लेकिन अपनी अलग लैंग्वेज, जैसे गोलैंग अगर आपने नाम सुना होगा, जावा है, गोलैंग है, नेट आपका पाइथन है, इस तरह की लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो टू राइट द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। यहाँ पे बस सॉलिडिटी
और एक दो लैंग्वेज और यूज होती है, बस ये थोड़ा सा फर्क है इसमें। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा अगर आपको आइडिया लग जाता है तो मेरे ख्याल से हम समझ सकते हैं कि कंसेप्ट हमारा कैसे काम कर रहा है। तो थोड़ा थोड़ा अगर आइडिया लगा नहीं लगा इनके बारे में, हल्का फुल्का जो टर्म है, देखिए मैं ये नहीं कहता आपको ब्लॉकचेन एक दिन में समझ में आ जाएगा, पर ब्लॉकचेन के अंदर जो शब्द हम यूज कर रहे हैं एटलीस्ट उनका एक आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। मेरा कंसेप्ट, अगर आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो तो उन शब्दों को आपको पकड़ना चाहिए। अब जरा फिर से पकड़ के देखिए हमने क्या कहा है। ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर डेटाबेस है जिसके अंदर एक बैकग्राउंड में टेक्नोलॉजी काम कर रही है। वो कैसे काम कर रही है, अभी सोचिए मैंने रिमिक जो कि ऑनलाइन डेटाबेस सर्वर था मेरा, उसको लोकल को मैंने कनेक्ट किया, वो डेटा को मेरे लिए मैनेज कर रहा है, तो मुझे कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो एप्लीकेशन हमने बनाई थी ये सीधे ब्लॉकचेन के अंदर रहती है। ऐसी एप्लीकेशन सिर्फ बोलते हैं डैप्स या ये नॉर्मल से थोड़ा हटके होती है, इसलिए इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये बिल्कुल अलग तरह का एनवायरनमेंट है। तो मेरे ख्याल से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा शब्द अगर आपको, ये जो यहाँ तक हमने शब्द इस्तेमाल करें एटलीस्ट यहाँ तक का कोई डाउट अगर कुछ लग रहा हो, जो शब्द हमने डिस्कस, चेन कोड किसको कह रहे हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम किसको कह रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी हम किसको कह रहे हैं, क्रिप्टो हम किसको कह रहे हैं, कोई डाउट आ रहा है कि क्वेश्चन आ रहा है, तरुण से जरा चेक करिएगा एक मिनट, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक आया हो। मैंने कहा ना बेटा, देखिए दिस इज नॉट जस्ट वेबिनार, दिस इज 100% प्रैक्टिकल बेस्ड, यू कैन से स्मॉल वर्कशॉप। अगर आप पहले भी कोई प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन करना चाहते हैं, आई कैन गिव द होल दिस कोड आल्सो। कोई क्वेश्चन है तरुण सर? कोई क्वेश्चन नहीं है? या तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा बच्चों को, दो ही बात है, या तो क्वेश्चंस नहीं आने का मतलब है, या तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा, या बच्चे मेरी बात को पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्वेश्चंस तो तभी आते हैं जब कुछ समझ में आता है। चलिए लेट अस सी। चलिए कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं यहाँ पे। जिस ओपन सोर्स ब्लॉकचेन से मैं नाम याद किया था, अभी मैंने एक नाम बताया था आपको, आता है कोडा। कोडा हमने किस कैटेगरी में आता है, हमारा कंसोर्शियम में आता है। मैंने कहा था जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की जो बैंकिंग है वो बेसिकली इसको अडॉप्ट कर रही है। जैसे बहुत सारी बैंक है जो R3 कोडा के मेंबर है, जो इसके लिए काम कर रही है। बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें ब्लॉकचेन की रियल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा काम कर रही है। दूसरा है क्वारम। जेपी मॉर्गन आपने नाम सुना हो, डाल के देखिएगा, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड इज नोन एज जेपी मॉर्गन। उनका अपना एक ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है क्वारम, जो इसके लिए बनाया गया है, और जो इथेरियम पे बेस्ड मॉडल है इसका नाम है क्वारम। ये भी एक ब्लॉकचेन है। अलग अलग कंपनियां अलग, जैसे आपने नाम सुना होगा फेसबुक का, तो फेसबुक ने भी अपना कॉइन निकालने की कोशिश की थी, लेकिन Sir, VP sir, VP sir. No, VP sir is actually is mute, on mute. So kindly hold on. Maybe some of the network or technical issue. Then we'll resume this session within 1-2 minutes. Maybe this is the end of the problem with the end of the speaker. Hello, VP sir is joining. Wait for 2 or 3 minutes only.
shared on the chat box. Kindly fill the feedback form. Yes, students, my voice is audible to you all? Yes, Yes. ma'am. Okay, but wait for a while. Maybe some of the technical issues is at the end of the speaker. Although I know you all are enjoying this session, and that is a cause of an interruption due to the hinge of a network. So be patient. Okay, we will resume. And within a meantime, kindly fill the feedback form, which is already shared on your chat box. Your suggestions or your suggestion is always important for us. So, student, kindly fill the feedback form within a meanwhile. We will join again. Okay, Bacha? आई एम सॉरी, डिस्कनेक्ट हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि कब नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया था। Sir, no issue, sir. That is a network issue which is always is any time it पता ही occurs. चला, मैं तो सेशन कंटिन्यू था, अचानक ही तो बैकग्राउंड में कभी स्क्रीन गायब हो गई, पता ही चला मुझे। So no चलो issue, sir. लेट्स So students are waiting to you. So, चलिए sir, चलिए, please again start हाँ it. जस्ट अ सेकंड जस्ट। Okay, sir. अब ये कहाँ से कहाँ पे नेटवर्क गायब हुआ, तो मुझे तो ये भी नहीं पता इस वक्त मैं क्या डिस्कस कर रहा था आप लोगों से और क्या कहाँ पे गया था नेटवर्क। चलिए, तो अभी मैं जो मुझे लगा काफी तरह से मैं डिस्कस कर चुका था, तो यहाँ पे कोई पॉइंट तक पहुंच गए तो हम क्या Sir, डिस्कस on कर रहे back, sir, this slide. You are on a sir, back This one? back one, हाँ, this दिस one. वन ना? That ओके। slide was discussed, yes, sir. अब इसमें हमने कुछ पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, कुछ मैं डिस्कस कर रहा था, पता नहीं कहाँ पे क्या छूटा। कुछ पॉइंट याद दिलाइए मुझे, आपको किस पॉइंट पे हम डिस्कस कर रहे थे, कहाँ छोड़ा था, याद है किसी को? हेलो, फिर चले गए कनेक्ट हो। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Sir, you are in. Sir, you just start from this slide for the blockchain terminologies. चलिए ठीक है, मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ यहाँ से। Yes, sir. चलिए, यहाँ पे कुछ टर्म्स हमने डिस्कस किए थे। सबसे पहला था नोड। तो मैंने कहा था जो भी हमारी मशीन है या लैपटॉप है जिसके ऊपर हम पूरी पूरी ब्लॉकचेन को डाउनलोड कर लेते हैं और वो आपका नोड बन जाती है, फिर ध्यान रखिए। लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि ये जो ब्लॉकचेन से काफी बड़ी साइज में, क्यों डेली डेटा अपडेट हो रहा है तो ये बढ़ती चली जाती है। और लगभग मैंने बताया था लास्ट ईयर ये इनका जो साइज था, हमारे जो इथेरियम ब्लॉकचेन और बिटकॉइन, लगभग इनका साइज लगभग 300 जीबी के आसपास पहुंच चुका था। तो 300 जीबी, आप सोचिए उतना डेटा अगर आप इतने कैपेबल है कोई आपकी हार्ड डिस्क जिसके ऊपर 24 आवर्स नेट कनेक्टेड है, उसको आप नोड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे आप हजारों नोड बने हुए हैं, ऐसे आपका भी नोड बन जाएगा। आप अपने खुद के नोड्स बिल्ड कर सकते हो।
दूसरी बात क्या है कि जब हम रियल नोड पे कोई भी चीज डालने से पहले जब अपना कोई कोड लिखते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, इसको पहले टेस्ट करना होता है। तो टेस्ट करने के लिए भी हमारे पास टेस्ट नोड्स होते हैं। कोई भी हम पैसा कोई लेन देन करते हैं, कोई डेटा को कहीं भेजते हैं, दैट्स कॉल्ड ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को जहां क्लब करते हो आप लोग उसको बोलते हैं ब्लॉक। सबसे पहला जो ब्लॉक है तो उसका नाम होता है जेनेसिस ब्लॉक। जो ब्लॉक 0 होता है उसका नाम होता है जेनेसिस ब्लॉक। तो आपके जो ब्लॉक स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो जनरली पहला ब्लॉक होता है किसी भी चीज का, दैट इज कॉल्ड जेनेसिस ब्लॉक। जेनेसिस ब्लॉक से हमें पता चलता है कि ये वाली ब्लॉकचेन कौन सी तारीख को रियल वर्ल्ड में स्टार्ट हुई। जैसे अगर मान लीजिए मैं एक छोटा सा केस दिखाता हूँ आपको, आप ये देखना चाहते हो कि हमारा जो इथेरियम है या बिटकॉइन है, ये कौन सी तारीख को रियल वर्ल्ड में आया था। एक रियल वर्ल्ड में अगर आप इसको देखना चाहते हो तो हम यहां से देख सकते हैं। अगर मैं जाता हूं सपोज बिटकॉइन एक्सप्लोरर, यहां मैं लिखता हूं गूगल के ऊपर, मैं गूगल पे जाता हूं और यहां लिखता हूं मैं बिटकॉइन एक्सप्लोरर, ये आ गया बिटकॉइन एक्सप्लोरर या bitcoin.com.explorer, नीचे भी आ रहा है, BTC भी आ रहा है। देखिए अब यहाँ पे देखिए अलग अलग प्राइसिंग ब्लॉक्स आ रहे हैं। देखिए अगर मैं कोई ब्लॉक सर्च करता हूँ यहाँ से, एक्सप्लोरर ये आ गया मेरा ब्लॉक नंबर, मैं 0 नंबर ब्लॉक सर्च करता हूँ। देखिए यहाँ पे ये कहा मैंने 0 नंबर ब्लॉक और हमने इसको मारा सर्च। एक सेकेंड, हम यहाँ से सर्च करें डॉलर एक्सप्लोरर 0 नंबर ब्लॉक, एक सेकेंड सर्च पर 0। ये देखिए 0 नंबर ब्लॉक किसका सर्च कर रहा हूँ मैं, BTC का। ऊपर मैंने 0 लिखा है, यहाँ पे एंटर किया, देखिए ये आ गया ब्लॉक 0। ब्लॉक 0 कब हुआ था, देखिए आप यहाँ तारीख देख लीजिए, ये है 3 जन 2009। पहला जो ब्लॉक बना है वो बना है 2009, यानी बिटकॉइन की जो पहली शुरुआत कहां से हुई है, ये 2009 से 3 जनवरी, और वो भी रात के 11:15 बजे। आप गौर करिए, देखिए पहला ट्रांजेक्शन जो हमारा था वो यहाँ से हुआ था। तो क्या है, कहां से किसी चीज की शुरुआत हुई है आप यहां से देख सकते हो। अगर यही चीज मैं अगर इथेरियम के केस में देखता हूँ, इथेरियम की शुरुआत कब हुई थी, आप यहां से देख सकते हो। ये 2000, देखिए ये 1970 की टाइम स्टैम्प दिखा रहा है, ये कुछ गड़बड़ है तो ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। तो इथेरियम का टाइम स्टैम्प कुछ और मशीन से गलत लिया हुआ है, नहीं 2015 का है ये वाला। जो ये देखते हैं इथेरियम का गलत क्यों दिखा रहा है, ये प्री ब्लॉकचेन का ही है एक्चुअली 2009 का, उसका कुछ इशू हो सकता है इसका। तो ये ध्यान रखिए जो पहला ब्लॉक होता है किसी भी ब्लॉकचेन का उसको कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक। वो ब्लॉक हमेशा 0 नंबर ब्लॉक होता है, और इससे हमें पता चल जाता है कि कोई ब्लॉकचेन कौन सी तारीख को रियल वर्ल्ड में स्टार्ट हुई थी, स्टार्ट नहीं हुई थी। ब्लॉकचेन आप यहाँ से देख सकते हो कि कौन सी तारीख को कितने बजे स्टार्ट हुई। ये जेनेसिस ब्लॉक अपने आप में एक कंसेप्ट होता है, जिससे कि ब्लॉकचेन के कंसेप्ट जहां से शुरू होता है, जो पहला ब्लॉक होता है दैट्स कॉल्ड जेनेसिस ब्लॉक। तो ब्लॉकचेन आप समझिए, जब हम ब्लॉक्स को क्लब कर देते हैं दैट्स कॉल्ड ब्लॉकचेन। और जो हमारे पास मल्टीपल कंपनीज को डेटा को हम एक साथ क्लब कर सकते हैं ब्लॉकचेन के, तो सारा का सारा जो डेटा होता है वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। और हमने एक बात बताई थी कि जब हम किसी पजल को सोल्व करते हैं तो एक नंबर जनरेट होता है, जिस नंबर के ऊपर पजल हमारी सोल्व की जाती है वो नंबर जो प्रोड्यूस होता है उसका नाम होता है नॉन्स। और हमने कहा था इसके पीछे डेटा स्ट्रक्चर काम करता है, जैसे लिंक लिस्ट होती है, इसका नाम है मर्कल ट्री। जैसा आपने और भी नाम सुने होंगे, बी ट्री वगैरह कुछ आपने नाम सुने हो, उसी तरह से इसके पीछे डेटाबेस काम करता है, स्ट्रक्चर काम करता है, उसको कहते हैं मर्कल ट्री। और उसका जो सबसे ऊपर जो नोड होता है, रूट नोड बोलते हैं, तो मर्कल रूट बोलते हैं। ये सब ब्लॉकचेन के कोर्स जब हम पूरा पढ़ाते हैं आप लोगों को, वहां सब चीज डिटेल में पढ़ाई जाती है। फिर हमने कहा था यहाँ पे हैश फंक्शंस होते हैं, SHA-1 SHA-256, उससे कोड जनरेट होता है, इसको हैश कोड या सिपर बोलते हैं। हमने कहा था प्रोग्राम जो हम लिखते हैं यहाँ पे उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट या चीट कोड बोलते हैं। फिर जो आपने ट्रांजेक्शंस किए हैं इनको अगर आप ऐड करना है ब्लॉक में तो उसके प्रोसेस का नाम है माइनिंग, और जो पर्सन माइनिंग करता है उसको बोलते हैं माइनर। जब कोई चीज आप माइन करते हो तो उसके पीछे कुछ एल्गोरिथम्स काम करते हैं, इनको बोलते हैं कंसेंसस, जैसे POW मैंने नाम बताया था आपको, उसी तरह की और बहुत सारी एल्गोरिथम्स जो यहाँ काम करती है। जो भी ट्रांजेक्शंस हुए हैं उनको देखने के लिए होता है एक्सप्लोरर, जैसे भी हमने बिटकॉइन एक्सप्लोरर, इथेरियम एक्सप्लोरर, etherscan.io जो नाम बताए थे। एक होता है ABI, जब भी आप कोई कॉन्टेक्ट स्मार्ट कॉन्टेक्ट बनाते हो उसके पीछे स्ट्रक्चर काम करता है, उसको कहते हैं एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। तो आप उस फंक्शन के अंदर जो भी आपने स्मार्ट कॉन्टेक्ट बना रखा है उसके अंदर कितने फंक्शंस हैं, क्या वो आर्ग्यूमेंट लेता है, उसका स्केलेटन क्या है, वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। जब कोई भी ट्रांजेक्शन आप लोग करते हो उसके पीछे कुछ पैसे खर्च होते हैं, उसको बोलते हैं गैस। इथेरियम खर्च होते हैं, पैसे मतलब नहीं, इथेरियम खर्च होते हैं, दैट्स कॉल्ड गैस। उसकी सबसे जो छोटी यूनिट है उसका नाम है वे। जैसे अगर आप एक इथेरियम देख रहे थे 1,30,000 रुपए का था, अगर उसकी जो सबसे छोटी यूनिट है उसका नाम है वे, और एक इथेरियम के अंदर 10 की पावर 18 वे होते हैं। इसका मैं सोचिए कितना छोटा अमाउंट वे होता होगा।
10 की पावर 18 वे होते हैं एक इथीरियम के अंदर। तो ये बहुत छोटा अमाउंट होता है अगर इथीरियम के टर्म्स में बात करें। तो जितने पेमेंट होते हैं मोस्टली वे के टर्म में ही होते हैं। एक इथीरियम कोई पे नहीं करता, वे पे करते हैं लोग इसके अंदर। ये सब टर्मिनोलॉजीज हैं, जब हम डिटेल में जब कभी ब्लॉकचेन डिस्कस करते हैं तो उनके बारे में और डिटेल में बताते हैं, पर कुछ टर्म्स हैं जो थोड़ा बहुत अगर सुन लेते हैं तो समझ में आ जाते हैं। ये अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स हैं जिनकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था। जैसे प्रूफ ऑफ वर्क जो अभी हमने डेमो दिखाया था आपको, वो था प्रूफ ऑफ वर्क का, जो एक पजल सॉल्विंग एल्गोरिथम है। हालांकि इसमें टाइम बहुत खर्च होता है, सब टाइम कंज्यूमिंग, पावर कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। और बहुत सारे प्रूफ ऑफ स्टैक, जैसे अभी इथेरियम ने नया अडॉप्ट किया है प्रूफ ऑफ स्टैक। इसी तरह से प्रूफ ऑफ वेट होता है, प्रूफ ऑफ कैपेसिटी होता है, प्रूफ ऑफ एक्टिविटी होता है। ये अलग अलग तरह के एल्गोरिथम्स हैं जो अलग अलग तरह की ब्लॉकचेन यूज करती हैं, और इनके अलग अलग एडवांटेज हैं, अलग डिसएडवांटेज, ये सब हमें पढ़ने पड़ते हैं कोर्स के दौरान, सब पढ़ना। पीबीएफटी क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं हाइपरलेजर फैब्रिक की, वो पीबीएफटी का यूज करता है। तो इनके क्या यूज हैं, क्यों करते हैं लोग, किस तरह से, कौन किसकी क्या एडवांटेज है, किसके क्या डिसएडवांटेज है, ये सब पूरा टॉपिक होता है। ये लगभग मान के चलिए लगभग 10 से 12 घंटे का टॉपिक तो खाली कंसेंसस के ऊपर होता है, जिसके अंदर हम सारे एल्गोरिथम्स के बारे में बताते हैं कि इनके एल्गोरिथम कैसे काम करते हैं। ये कुछ टूल हैं जिनके बारे में बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो आप यहाँ यूज करते हो ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए। जावा है, गोलैंग है, जावास्क्रिप्ट है, सॉलिडिटी है, वाइपर है, सी प्लस प्लस है। जैसे अगर आप बिटकॉइन की बात करें वो पूरा सी प्लस प्लस के अंदर लिखा गया है। जैसे इथेरियम की बात करूं तो वो पाइथन और सी प्लस प्लस के कॉम्बिनेशन से लिखा गया है। रस्ट, आजकल रस्ट भी बहुत यूज हुआ है कई जगह कहीं। इसके अलावा अगर देखेंगे तो वो जो टूल है आपके मेटामास्क है, ट्रिपल फ्रेमवर्क है, गणेशा है, रिमिक्स है, डॉकर है, नोड है, कर्ल है, गैथ है, एसओएलसी सॉलिडिटी कंपाइलर होता है, वेब3जेएस एक लाइब्रेरी होती है जिससे कि जो आपने एप्लीकेशन बिल्ड किए हैं उनको आप क्लाइंट में कैसे एम्बेड करोगे, अपनी एप्लीकेशंस में, मोबाइल में या वेब में कैसे इंटीग्रेट करोगे, उसके लिए लाइब्रेरी होती है वेब3जेएस। ये कुछ लाइब्रेरीज या टूल्स हैं जो हम यूज करते हैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए। अलग अलग चीजों में अलग अलग तरह की लैंग्वेज होती है, अलग अलग तरह के टूल्स होते हैं। ये कुछ आप न्यूज देख सकते हो कि आइडिया के लिए कि हाँ सच में किस तरह से रियल वर्ल्ड में काम हो रहा है। तो अलीबाबा का आप अलीबाबा को मेरे ख्याल से सब लोग जानते होंगे, आप इसको देखें तो अलीबाबा क्रॉस बॉर्डर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूजर्स, ये 2020 की लास्ट ईयर की न्यूज है, आप इसको गौर करें। ई बॉर्डर कॉमर्स प्लेटफॉर्म यूजिंग ब्लॉकचेन फॉर ट्रेसेबिलिटी। मैंने आपको बताया था ट्रेसेबिलिटी हमारी बहुत बड़ा यूज केस है। लैंड रिकॉर्ड का केस हो, प्रोडक्ट का कोई चीज कहां से आई, ये चीज हमें ट्रेस करनी पड़ती है, ब्लॉकचेन का बहुत बड़ा यूज केस है। तो अगर आप देखें लास्ट ईयर शायद आपको पता हो रिलायंस ने लगभग 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर। हाइपरलेजर फैब्रिक और आपने जो पता जो माइक्रोसॉफ्ट का हमारा अजूर क्लाउड है उसके ऊपर लगभग 300 करोड़ रुपए इंडिया में इन्वेस्ट किया है ओनली फॉर दिस टेक्नोलॉजी। बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, 300 करोड़ रुपए इसके ऊपर इन्वेस्ट किया। HSBC कोट्स $10 billion फॉर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ R3 कोडा ब्लॉकचेन। गौर करिए, मैंने कहा था बैंकिंग, R3 कोडा है बैंकिंग सेक्टर का प्रोडक्ट। HSBC is one of the partners of their R3 कोडा मेंबर्स। ये 28 मार्च की न्यूज, आप गौर करिएगा, देखिए $10 billion जो उसमें इन्वेस्ट किया है। तो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। अगर $10 billion कोई एक सिंगल बैंक अगर ब्लॉकचेन में लगा रही है, वो भी एक ब्लॉकचेन में लगा रही है R3 कोडा के लिए, तो आप ये सोल्यूशन, अगर अलीबाबा जैसी कंपनी अगर आप ब्लॉकचेन के ऊपर काम कर रही है तो आप आइडिया लगा सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी कोई छोटी मोटी नहीं है। और इस चीज को हमारा देश सरकार समझ चुकी है, जो मैंने आपको बताया था कि इंडिया के अंदर पूरी पॉलिसी आ चुकी है। इस चीज को थोड़ा सा अगर आप देखें तो थोड़ा सा देखिए ऊपर, अगर यूआरएल देखेंगे, ये यूआरएल है IIT बेंगलोर, ये क्या है, कौन सा वाला है, ये है IIT मुंबई बॉम्बे। ये अगर देखें ये रिपल पे काम कर रही है। रिपल भी एक तरह की ब्लॉकचेन है हमारे पास, जो उन्होंने पूरा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बिल्ड किए हुए हमारे, और आपकी कॉलेज के अंदर भी हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है ब्लॉकचेन का, जिस पर हम लोग काम करते हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होता है कि जिस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च कर रहे हैं, ये IIT बेंगलोर का एक सेंटर है। ये मैंने जो रिपल ने स्पॉन्सर किया हुआ है जो पूरा सेंटर। एंड रिपल एक खास तरह की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, जैसे कि अगर आपने सुना हो, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहले हम पैसा भेजते थे तो बीएन ने कहा था जो बीच की बैंकें आती हैं ये 3 से 4 दिन लेती थी पैसे को ट्रांसफर करने के लिए, और अच्छा खासा पैसा 3 से 4% लोग पैसा काट लेते थे। अब रिपल की मदद से क्या आप चाहें तो बिल्कुल, ये जो अभी कंसेप्ट आया इसके थ्रू ये कहा जाता है 18 सेकंड के अंदर आप वर्ल्ड के किसी कोने में पैसा भेज सकते हो। और ट्रांजेक्शन जो फीस लगती है वो हार्डली जो लगती है, अगर मैं बात करें पहले के मुकाबले 0.1% लगती है। पहले जहां 4% लगती थी, लगभग 0.1% लगती है। तो उसमें टाइम भी सेव हो रहा है आप लोगों का, और पैसा भी सेव हो रहा है। तो ब्लॉकचेन बहुत सारे एरियाज में बहुत अच्छा काम कर रही है। ये आप देख सकते हो। दूसरा केस है IIT कानपुर का। IIT कानपुर इज वर्किंग ऑन नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट। ये पूरा जो अभी आपने जो डॉक्यूमेंट अभी देखा है, इसमें IIT कानपुर का बहुत बड़ा हाथ है इसको तैयार कराने। ये पूरी टीम लगी हुई है IIT कानपुर के अंदर जो इस काम पे काम कर रही है। ये तो मैं भी इंडिया के पर्सपेक्टिव बात कर रहा हूँ, ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जा रहा, आप लोगों को हल्का ग्लैंस देने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको।
जब ये चीज लोगों को समझ में आ गई इंडिया के अंदर, 2020 के अंदर जो यूनिवर्सिटीज हैं उनकी समझ में आई कि ब्लॉकचेन इज गोइंग टू बी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इन द नियर फ्यूचर, सो दे शुड ऐड दिस कोर्स इनटू देयर करिकुलम्स. सो नाउ ब्लॉकचेन हैज बिकम द स्पेशलाइजेशन इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस. अभी एमसीए के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि हाँ जल्दी ये एमसीए के अंदर भी इनकॉर्पोरेट होगा, लेकिन बीटेक के अंदर ये इनकॉर्पोरेट हो चुका है. अगर मैं एक एग्जांपल आपको दिखाऊं तो अगर आपने देहरादून की यूनिवर्सिटी का नाम सुना हो, यूपीईएस यूनिवर्सिटी, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको. यहां देखिए, बीटेक ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, बीटेक इन ब्लॉकचेन. आप ये देखिए, ये ऑनर्स डिग्री दी जा रही है. तो ब्लॉकचेन कोई अगर छोटी मोटी डिग्री होती या अच्छी टेक्नोलॉजी होती तो क्या आपको ऑनर्स मिलता है इसमें? आप समझिए. आप बीटेक ऑनर्स इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यूपीएस यूनिवर्सिटी अगर आप पता करेंगे देहरादून की, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन देहरादून. आपने वेलोर का नाम सुना होगा, चलिए ये हो सकता है छोटा लग रहा हो, वेलोर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. नीचे जरा देखिए सबसे लास्ट में, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विद स्पेशलाइजेशन इन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. तो अगर ये कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजी होती तो क्या आप स्पेशलाइजेशन बीटेक में लोग कर रहे होते? पूरा का पूरा 2 साल ब्लॉकचेन पढ़ाया जाता है स्पेशलाइजेशन के अंदर, चाहे आपका यूपीएस हो चाहे आपका वेलोर हो. जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं दे हैव ऑलरेडी अडॉप्टेड. इवन हमारी जो एकेटी यूनिवर्सिटी है हैज अडॉप्टेड ब्लॉकचेन एज ए पेपर. लास्ट ईयर मैंने 300 बच्चे करीब ब्लॉकचेन के पढ़ाए थे. ये हमारे कॉलेज का हाईएस्ट था. इवन जो और कॉलेज अगर आप पता करेंगे तो उतने नहीं बचे. ऑलरेडी करंट ईयर के अंदर ब्लॉकचेन ऑलरेडी है, शायद आपके हमारे यहाँ भी एमसीए में ऑलरेडी मैम पढ़ा रही है. तो ब्लॉकचेन इज ऑलरेडी वन ऑफ द पेपर्स व्हिच ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन आवर करिकुलम आल्सो. तो एकेटी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इसको अडॉप्ट कर लिया है, जैसे और प्राइवेट अडॉप्ट कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी अडॉप्टेड. तो ये सब ऑलरेडी हम कर रहे हैं इसको. तो आप समझ सकते हो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. बस एक आइडिया देख सकते हो कि अगर इस तरह के करिकुलम्स मार्केट में है, अगर कोई, जैसे हमने कहा भी कोई सीखना चाहता है तो सीखने के लिए कॉस्टिंग का एक अंदाजा छोटा सा आपको लग जाए कि मार्केट में जितनी टेक्नोलॉजीज हैं, ये जैसे हम लोग करा रहे हैं या ये चीजें आपको अपने कॉलेज के अंदर मिलती है, तो उसका एडवांटेज क्या है मार्केट के अंदर. आप गौर करिए, देखिए आईआईटी हैदराबाद टैलेंट एस्पिरेंट के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चला रहा है. सोचिए आईआईटी की बात कर रहा हूं मैं, ये बाहर थर्ड पार्टी के साथ मिलकर एक प्रोग्राम चल रहा है. फीस क्या है जरा गौर करिए, 18 मंथ्स का प्रोग्राम है और फीस लगभग 1,70,000 रुपए. आईआईटी हैदराबाद की बात कर रहा हूं मैं आपको. ये एक छोटा सा प्रोग्राम है जो लॉन्च कर रखा है इन्होंने, जो कि ऑनलाइन है, ऑफलाइन भी नहीं है, ये ऑनलाइन प्रोग्राम है. इसकी फीस है 1,70,000 रुपए. अमेठी आपके पड़ोस में है, उसकी जरा फीस देखिए 1,80,000 रुपए 12 महीने की फीस है, वो भी ऑनलाइन मोड में. ये 15 मार्च से नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं. इसके पे थर्ड पार्टी बॉडी जोड़ी हुई करना. तो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ये जो टेक्नोलॉजी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कोई छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज नहीं है. अगर इन टेक्नोलॉजीज के ऊपर अगर अपना कैरियर ऑप्ट करते हो आप लोग, या अपने अगर जो भी आप बीसीए के बाद एमसी कर लेते हो, बीसीए जो भी आप डिग्रीज आप ज्वाइन करते हो, उनके अंदर सबसे ईवीएस एडवांटेज आप ले सकते हो. ईवीएस एडवांटेज हमारा सबसे बड़ा मिलता है कि एमसीए के अंदर या दूसरे हमारे प्रोग्राम चलते हैं, उनके अंदर ये सारी टेक्नोलॉजीज एम्बेडेड की दी जाती है, बच्चों को फ्यूचर के साथ इनको तैयार किया जाता है. तो ये सब चीज एक एडवांटेज के तौर पर आप देख सकते हो. ये हल्का सा ग्लैम्पस मैंने देने की कोशिश की है टेक्नोलॉजी के बारे में, क्या फीचर है, क्या प्रोग्राम है, क्या इंडस्ट्री कर रही है, क्या हमारे एकेडमिक्स कर रही है, उसको एक छोटा सा एक टच है. बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हो, यू कैन कम विद ऑल दोस क्वेरीज राइट. आई थिंक मेरी तरफ से ये काफी है, जहां तक मैं समझता हूँ. मैंने अपनी तरफ से काफी ग्लैम्पस देने की कोशिश की है आपको इसका एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है इंट्रोडक्शन टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. बाकी और जो क्वेरीज हैं, आप, ये मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल है डॉक्टर दीपी शर्मा के नाम से, आप मुझसे लिंक्डइन पर कनेक्ट हो सकते हैं. कोई क्वेरीज हो आप वहां से भी मुझे कर सकते हैं. ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जहां से अगर कोई क्वेरीज आपकी आप डायरेक्ट भी पोस्ट कर सकते हैं, और डिपार्टमेंट में आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां के थ्रू भी आप क्वेरी हमें भेज सकते हैं. यस मैम. बाकी देखिए कुछ और क्वेरीज आ रही हैं तो आई कैन गिव यू द आंसर्स ऑफ दोस क्वेरीज. हमारी मैम तरुण सर. यस सर, यस सर. बेटा कुछ और पूछना है आपको ब्लॉकचेन के रिगार्डिंग? जितनी जानकारी दी गई है, क्या कहते हैं बच्चे, दिस मोर देन सफिशिएंट? बेटा कुछ समझ में आया आप लोगों को? आई थिंक अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज अ ब्लॉकचेन, व्हाट इज द यूज ऑफ द ब्लॉकचेन. ओके, अगर इफ यू हैव एनी डाउट राइट, तो आप बीपी सर से आप पूछ सकते हो. उन्होंने शायद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर कर दिया होगा राइट. और अगर आपको इसकी रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग में ऑलरेडी जो यूट्यूब का लिंक है वो ऑलरेडी मैं चैट बॉक्स पर शेयर कर चुकी हूँ. ओके, so thank you again for attending this webinar, and you'll get your e-certificate on your mail ID. Okay.
तो मैम इसको बंद सर एक ऑफ बार करें। व्हाट्सएप पर क्वेरी पूछ सकते हैं। यस यस, व्हाट्सएप नंबर पर हाँ, आप नंबर query जो पूछ शेयर सकते किया है मैंने उस पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत हैं। आप उस पर पूछ सकते हो। कोई नहीं यश, अगर आप थोड़ा लेट हो गए हो तो जो भी इसकी रिकॉर्डिंग है जल्दी से यूट्यूब पर आपकी वो आप एक्सेस कर सकते हो। लिंक ऑलरेडी शेयर है चैट बॉक्स पर। ओके मैम, ओके 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 मैम, ओके, थैंक थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। नहीं। ओके मैम, थैंक यू एवरीवन। कोई भी क्वेरी हो आप कभी भी पूछ सकते हैं आप लोग। Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सर। Very nice session.